With great pleasure, I would like to introduce Brigadier Sanjay Singh on the platform of our ongoing FDP. With a magnificent career as an Indian Army officer, Brigadier Sanjay Singh's career is an example of multidisciplinary approach highlighted in national education policy. He completed his MSc with specialization in electronics from Meerut University campus at that time and CCS presently. Owing to his multifaceted personality traits, he joined Defense Services. Being inclined to academics, he pursued B.Tech in electronics from College of Military Engineering. Later, he did MBA in Management Studies from College of Defense Management and completed all his courses with flying colors. He is still pursuing PhD in Defense Studies from Meerut College, Meerut. A keen sportsman, having represented college and district in football. There are some important appointments of Brigadier Sanjay Singh in Army. National Security Guards. Team leader in Congo. He has been commanding officer of YOL Himachal Pradesh. Director Acquisition in Army Headquarters. Instructor in Army War College. He has been Deputy Director General in Border Roads. He has been officer Okay, madam. War Command. Mute करो या unmute करो? Mute तो है. He has played a key role in disaster relief operations during earthquake in Uri in 2005. Let us extend a warm welcome to Brigadier Sanjay Singh, a dedicated officer with academic interest and a keen sports person and dynamic personality. Welcome, Brigadier Sanjay Singh. We are eager to hear you. Thank you very much, Garima Madam. Thank you very much for an opportunity to talk to the faculty on a very important topic of national education policy and relating the national education policy with the community development. जैसे मैंने आपका ये वेबिनार का जो ब्रोशर है वो देखा है, lot of speakers are there and काफी कुछ कवर कर रहे हैं आप लोग. My compliments to you and your team. मेरा जो लेक्चर होगा ये I will focus only on that part of the NEP which is related with the community development. जैसा कि आपने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, neither I am a educationist nor I am a sociologist, but my only thing is that I have been your student. So आप जब भी कुछ कहती हैं कुछ नया सीखने के लिए तो मैं उसको पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद आप लोगों के सामने आ जाता हूँ to present it. And thank you very much for giving this opportunity to me. Last time you gave me some topic on personality development, and today I'm here with you again to talk about the national education policy and its implication on the community development, right? You have given me a time of 2 hours. So let me see how much time I'll take. I have got a presentation which I'll share with you. So I will go as per the presentation. I am sharing the slides with you. Just kindly let me know if you are able to see those slides or not. Are the slides visible, ma'am? Yeah, certainly they are visible. And you are okay. So can you see the slides now? Okay, yeah. Fine. So this talk of mine on NEP 2020 and community development, I will cover in some few slides of 50-54. An approximate time, I'll take around 90 odd minutes. Ma'am has been generous enough not to give me any break in between, but we will see how we go about it. Before we get into the business of national education policy, here are 3 important people of our country. Unke quotes hain.
First is by the APJ Abdul Kalam. He says education is the most powerful weapon which you can use to change the world. The important word here is world. अब्दुल कलाम साहब का भी ये कहना था कि अगर आप एजुकेशन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें जिससे आप जो दुनिया को बदल सके, बेसिकली एजुकेशन इज नॉट फॉर योर पर्सनल यूज, एजुकेशन इन यू इज ऑल्सो फॉर द changing the world, right? And they're in the community council. Then Dr. Manmohan Singh said the true investment in our nation's future lies in our classrooms, where the next generation of leaders is being developed. Very rightly he said कि जो हमारी क्लासरूम्स है, जहां जो आजकल के बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो कल के लीडर हैं, उनको तैयार किया जा रहा है. एंड देयरफॉर एक एजुकेशन पॉलिसी ऐसी ताकि हम उनके अंदर लीडरशिप की स्किल्स डाल सकें, वो बहुत जरूरी है. एंड देन वी हैव अवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ही सेज whatever education a university imparts, it must achieve the global level of benchmarking given the vastness and diversity of the global village we live in. Basically, he has taken it further, one step ahead. ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज एक हम ग्लोबल कम्युनिटी की तरह रहते हैं, और अगर हम ग्लोबल कम्युनिटी की तरह रहते हैं तो हमारे जो ग्लोब के बेंचमार्क्स हैं, जो ग्लोब की बेंचमार्किंग प्रैक्टिस है, मिनिमम जो लेड डाउन लेवल्स हैं वर्ल्ड के, अगर हमें वर्ल्ड के साथ बिजनेस करना है, वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करना है, तो बहुत जरूरी है कि जो ग्लोबल लेवल ऑफ बेंचमार्किंग है, हमारा जो एजुकेशन का स्तर है उससे ऊपर हो, एंड तभी जाके हम एक कम्युनिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात हमारे एजुकेशन के साथ आज की नई बात है, नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आप हमारे जो अगर इतिहास को देखें, जो हमारी पुरानी यूनिवर्सिटीज थी, उस यूनिवर्सिटीज में गुरुकुल की एक प्रथा होती थी. नालंदा, तक्षशिला की बात हम करें, दे वर वेरी फेमस यूनिवर्सिटीज एट दैट टाइम, और वो एशियन की ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जहां लोग बाग पूरी साउथ एशिया से पढ़ने के लिए आते थे, राइट? सो उसके अंदर फिलॉसफी, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी की अगर हम बात करते हैं, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, इनको बहुत करीब बारीकी से पढ़ाया जाता था. और अगर हम देखें तो जो हमारे समाज में ब्राह्मण्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा उसको यूज किया, कल्टीवेट किया, और उनका डेवलपमेंट भी हुआ. कहने का मतलब ये है कि जिस भी कम्युनिटी ने, जिस भी समाज ने, जिस भी देश ने एजुकेशन का उपयोग किया है, वो हमेशा तरक्की पे आया. देन वी हैड मुस्लिम रूलर्स एज वेल. उन्होंने स्कूल्स बनाए, मदरसेस बनाए, उन्होंने अरबिक में, फारसी में, इस्लामिक आइडियोलॉजी में, थियोलॉजी में, साइंसेस में काफी इन्वेस्टमेंट किया. और हम देखते हैं हमारे इतिहास के अंदर काफी स्कॉलर्स हैं, काफी पोइट्स हैं, काफी ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिसको उनका फायदा हुआ है, राइट? देन वी वर आल्सो रूल्ड बाय द कॉलोनीज. आई मीन ब्रिटिशर्स ने हमारे पास काफी टाइम रूल किया. काफी टाइम रूल करने से उस टाइम में जो हमारे एजुकेशन की जो प्रथा थी, उस टाइम में हमारी जो एजुकेशन दैट वाज एक्सेसिबल ओनली टू द अर्बन एंड एलीट, एंड देयर वाज इंपॉर्टेंट फोकस ऑन द इंग्लिश एजुकेशन, राइट? सो उस समय जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, वो चाहती थी कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्लर्क्स की तैयारी हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स मिले उनको, कॉमर्स के लोग मिले, तो उनकी जो एजुकेशन की पद्धति उस हिसाब से बनाई गई, और मिले भी काफी. आज के टाइम पे अगर आप देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लोग विदेश में जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो शायद एक वो एजुकेशन पॉलिसी थी जिसमें इंग्लिश का बहुत ज्यादा उपयोग था, जिसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बाहर जाते हैं, दे डू वेल एज वेल, राइट? एंड ऑल्सो दिस एजुकेशन पॉलिसी हैज गिवन अस ग्रेट लीडर्स इंक्लूडिंग सम फ्रीडम फाइटर्स. सो कहने का ये मतलब है कि जिसने भी जिस भी काल में एजुकेशन को अपनाया है, उसकी स्मृति जरूर हुई है. लेकिन हाँ, ऐसा है कुछ हमारे नुकसान भी हैं. हमारी कुछ कम्युनिटीज ऐसी रही हैं जो मार्जिनलाइज रही हैं, जिनको एजुकेशन पूरी नहीं मिली है, चाहे वो लेडीज की हम बात करें, डिसेबल्ड की बात करें, वुमेन की बात करें, और कुछ हमारी अपनी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको एक बार बैकवर्ड ट्राइब्स, जिनके पास एक्सेस नहीं था एजुकेशन का, जिनके पास इक्विटेबल एजुकेशन नहीं थी, एजुकेशनल राइट्स नहीं थे, सोशल जस्टिस नहीं था. तो काफी मूवमेंट हुए, जैसे राजा राम मोहन राय ने बंगाल में किया, विद्यासागर जी ने बंगाल में किया, और उसकी वजह से जो महिलाओं की एजुकेशन है काफी. सो कहने का ये मतलब है कि अगर आप हिस्ट्री को भी देखें तो हिस्ट्री के अंदर भी एजुकेशन का और कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक डायरेक्ट लिंकेजेस रहा है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए उस टाइम की जो भी संस्था रही है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा अभी मॉडर्न इंडिया है, उस मॉडर्न इंडिया के अंदर रिजर्वेशंस लगाए, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह चलाया गया. कोशिश हमेशा यही रही है कि कम्युनिटी को अगर आगे लेके जाना है तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एजुकेशन
which has to play in this, right? So with this, I come to the presentation. I will present you my talk in two parts. In the first part, I will cover the significance of education in community development. इस सवाल को हम ढूंढेंगे कि education का community development में significance क्या है, right? And दूसरे part में जब हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि yes, it has got an important role, then we will see how we as a nation has addressed this. हमने community development वाले aspect को अपनी education policy में किस तरह से डाला है. That relation between the education and the community development we will try and explore in the second part of my talk, right? The first part of my talk, हाँ कोई बात नहीं, पहले मैं काम करूँ. I am having a little disturbances, sir. If you can kindly mute your audio, I'll be very grateful. So in the part one of my talk, I will be talking about the role of education in the community development. I have divided this part of my talk into four verticals. I'll say about the aim of education in community development. In the second part, I will say various aspects of community development. Community के development से हम समझते क्या हैं exactly. And in the third part, हम ये भी बात करेंगे हमारी जो communities हैं, बहुत अगर हम होमो सेपियंस की बात करें और आज तक जो जिस तरह की हमारी ग्रोथ हुई है, किस तरह से हमारा एवोल्यूशन हुआ है और किस तरह से एजुकेशन ने रोल प्ले किया है, उसकी बात करेंगे. एंड फाइनली वी विल से कि हमारे जो सिद्धांत हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के और क्या अप्रोचेस हमारी होनी चाहिए, उनके बारे में हम बात करेंगे, राइट? आप अगर इमेजिन करें एक ऐसा कोई समाज या ऐसी कोई कम्युनिटी या ऐसा कोई प्रदेश जहां बिल्कुल भी एजुकेशन ना हो. अभी भी अगर आप अंडमान निकोबार में जाएंगे तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां अभी भी बहुत ट्राइब्स हैं, वहां एजुकेशन अभी तक शायद उस हिसाब से नहीं पहुंची है. अगर एक ऐसा समाज अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो आप पाएंगे उस समाज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत होगा, क्योंकि यस, बिकॉज जो एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन से जो आपके अंदर क्षमताएं आती हैं, जो स्किल्स आते हैं, वो स्किल्स आपके पास नहीं होंगे. अगर वो स्किल्स नहीं होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट श्योरली आपके पास होगा. सेकेंड पे एनवायरमेंट इग्नोरेंस. हमारा जो नेचर है आसपास का, उस नेचर के अंदर रिसोर्सेज बहुत होते हैं. हम उन रिसोर्सेस को यूज करके अपनी जिंदगी चलाते हैं, चाहे वो ईंधन हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो पानी हो, एनीथिंग फॉर दैट मैटर. और अगर हमारे पास उनको सही इस्तेमाल का नॉलेज नहीं होगा तो वो खत्म हो जाएगा एंड वी विल एज ए कम्युनिटी सफर. हेल्थ केयर इलिटरेसी. अब अफ्रीका में अगर आप जाते हैं, मैं कुछ सालों रहा हूँ यूएन मिशन के अंदर, तो जब मैंने वहाँ इंटरेक्ट किया तो वहाँ के जो हम कॉन्गो की बात करें तो एक टाइम था वहाँ की जो एवरेज एज थी वो कहते 45-47, राइट? एंड व्हाई दिस एज वाज देयर? बिकॉज लोगों के पास हेल्थ केयर के बारे में क्या करना चाहिए उस बात का नॉलेज ही नहीं थे. तो उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, उनके जो जीवन जीने का जो अंदाज था, जो तरीके थे, वो तरीके शायद बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे और इस वजह से शायद वो जल्दी उनकी डेथ हो जाती थी. इकोनॉमिक अनअवेयरनेस. आज के टाइम पे अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, प्रॉफिट किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से हम अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं, इस तरह की अगर नॉलेज नहीं है तो आप अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को ढूंढ नहीं पाएंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. आपके आसपास बिजली है, पानी है, काफी चीजें हैं जो आपको चाहिए अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए. अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं है कि आपकी व्हाट आर योर फंडामेंटल राइट्स, then how will you even ask for them, right? You get my point. Limited political participation. This is again a very important part. Today we are running into a democratic country. हमारे पास एक वोटिंग का राइट है, हमारे अपने एक ड्यूटीज हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं और हमारी अपनी एक फंडामेंटल्स ड्यूटीज भी हैं और राइट्स भी हैं हमारे. सो उनका ज्ञान होने के लिए आपके पास नॉलेज बहुत जरूरी है. और अगर नॉलेज होगा तो आप एक एक्टिवली पॉलिटिकल प्रोसेस है देश का, उस देश में पार्टिसिपेट कर पाएंगे. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि किसी भी समाज को, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी प्रांत को, किसी भी क्षेत्र को. ये फोन नहीं उठा रही है, इसे पूछो किसने दिया नंबर ये तुम्हें? अगर आपको किसी भी बुला बात करा मेरे से, किसी भी चीज में अगर आपको तरक्की करनी है सोसाइटी की, देन यू विल नीड एजुकेशन एज एन इम्पोर्टेंट टूल, राइट? सो एजुकेटर्स, जो फैकल्टी है यहाँ जो बैठी हुई है, जो सुन रही है, आई वांट टू टेल देम कि आप लोग अगर अपना करिकुलम को डिलीवर करना चाहते हैं तो तब तक वो पूरा नहीं होगा जब तक एक आपके स्कूल के बीच में या आपके कॉलेज के बीच में जो आप पढ़ा रहे हैं, दैट इज गेटिंग बेनिफिटेड बाय द सोसाइटी.
So what I want to tell you is, if your education is not directly helping the communities to grow and develop, then there's no meaning of that kind of an education. And that is what the importance of education in community development is all about. अगर हम education की बात करते हैं, because I'm sitting all educators are there, all people who are involved in the branch of education, then if I ask you ideally, बिल्कुल अगर आइडियली सिचुएशन हो तो एजुकेशन का एम क्या होता है? एजुकेशन की अगर हम एम की बात करें तो एजुकेशन के एम अगर 3 जगह हम बांटें, इंडिविजुअल में क्या एम होगा, कम्युनिटी में क्या एम होगा, और नेशन के लिए क्या एम होगा. तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल में वो एक पर्सनल डेवलपमेंट और स्किल एक्विजिशन की बात करते हैं. पर्सनल डेवलपमेंट बेसिकली एक इंसान के अंदर कॉग्निटिव डोमेन होता है, दिमागी, सोशल डोमेन होता है, सोशल स्किल्स होती हैं, और एक उसके अंदर इमोशनल स्किल्स या इमोशनल डोमेन भी होता है. इन डोमेन्स के अंदर जो क्षमताएं हैं, जो कॉम्पिटेंसीज हैं, उनको डेवलप कराने की जिम्मेदारी एजुकेशन की होती है. एथिक्स, वैल्यूज, क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड वेलबींग, जो पर्सनल है, वो जिंदगी जी रहा है, उस जिंदगी में अगर एक क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना है तो उसमें एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट हो, हेल्थ हाइजीन की डेवलपमेंट हो, क्रिटिकल थिंकिंग की डेवलपमेंट हो. हमारे पास पैंडेमिक हुआ, कोविड आया, काफी सिचुएशंस ऐसी आई जिसमें आजकल के जो लोग, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनको बहुत क्रिटिकली सोचना पड़ा, क्योंकि मार्केट बंद हो गए थे, आवाजाही बंद हो गई थी. उस टाइम पे एक जिंदगी को आगे कैसे चलाना है, क्रिटिकली थिंक करने की एबिलिटी जो है हमारे पास शायद उस समय नहीं थी काफी, और उसको इम्प्रूव करने की जिम्मेदारी अगेन एजुकेशन की होती है. एंड फॉर ए कम्युनिटी, अगर एक हम समाज की बात करें तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशल कोहेजन के अंदर. ऑब्वियसली सोशल कोहेजन मतलब कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज हैं. हमारा एक देश है जो काफी डाइवर्स है. 100 किलोमीटर पे आप चलते हैं तो भाषा बदल जाती है, खाने पीने का अंदाज बदल जाता है, राइट. एंड इस बदलाव को समझने की जरूरत है, टॉलरेंस होने की जरूरत है. नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, जाट्स, गुजर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट. एंड ये जो समाज है, समाज के बीच में कोहेजन की जो जिम्मेदारी है, education plays a very important role in that. If you are educated, you'll be more tolerant. I mean, ideally, there are cases where education has also failed, but yes, education will play a definite role. Economic prosperity, एक community के अंदर एक अगर economic prosperity चाहिए तो उसके लिए भी education plays a important role. What I want to say is कि अगर एक community, एक समाज की quality of life को improve करना है तो उसमें education एक बहुत important role play करती है. सिमिलरली फॉर ए नेशन, अगर एक नेशन की डेवलपमेंट के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, अगर हम देश निर्माण की बात करते हैं, भारत निर्माण की बात करते हैं, उस निर्माण की प्रक्रिया के अंदर भी द नेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट. द एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, नेशन के अंदर सबसे बढ़िया रिसोर्स क्या है? वो देश की जो सिटीजन है, देश की जो पॉपुलेशन है. और कहते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत यंग पॉपुलेशन है, एंड दैट इज द वेरी पॉजिटिव पॉइंट विद अस. वी आर बेटर देन चाइना व्हेन इट कम्स टू द यंगर पॉपुलेशन. जापान स्ट्रगलिंग विद दिस एज पॉपुलेशन. जापान के अंदर कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है मोस्टली एजिंग है, और हमारे यहाँ पॉपुलेशन बिल्कुल बबल ऑफ एनर्जी है. सो इस कैपिटल, इस हमारी जो क्षमता को अगर इसको डेवलप करना है तो एजुकेशन विल प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल. इस यूथ को इस तरह की क्षमताएं दी जाएं ताकि आज की शताब्दी की जो स्किल्स हैं वो मिल सकें, तो वी एज एन प्रॉस्पर, राइट. ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, एज आई सेड, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कॉम्पिटिटिवनेस आ रही है. सो एजुकेशन विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्यूज. खाना खाने होगा तो यस वी कैन. एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि भी हमें बाहर ही जाके पढ़ना है, बट ये सब हमारे उनको साथ अगर इंटरेक्ट करना है तो बेसिक जो हमारा लेवल है उनके बराबर का होना चाहिए, राइट. नेशनल आइडेंटिटी, ऑब्वियसली एजुकेशन की वजह से आपकी जो एक भारतीयता होने की एक जो आइडेंटिटी है, इंडियन होने की जो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को थ्रू द एजुकेशन यू कैन एब्सोल्युटली नो अबाउट दिस. सो इन ए नटशेल आई कैन टेल यू, एजुकेशन जो है एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए. आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है उसके लिए बहुत जरूरी है, सोशल हार्मनी के लिए जरूरी है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है,
और नेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है. सो माय पॉइंट इज एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the development of an individual, community and a nation, right? हम अगर देखें तो फर्क क्या होता है नॉलेज एंड विजडम. जो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं उसको हम बहुत सीधी सीधी तरह से नॉलेज बोल सकते हैं, बट उस नॉलेज को अगर हम अपनी कम्युनिटी लाइफ में, अपने समाज के लिए, अपने घर में या अपने देश के लिए यूज कर सकें, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ दैट ऑफ टीचिंग विच यू आर गेटिंग इन द क्लास इज विजडम. तो होता क्या है, कभी कभी कुछ एजुकेशन हमारे, हो सकता है हमारे इस तरह की पॉलिसी रही हो, इस तरह का हमारी एजुकेशन रही हो जिसमें हम शायद वो डिस्कनेक्ट था, द नॉलेज वाज नॉट अलाइन्ड विद विजडम, एंड देयरफॉर द पीपल हु आर सिटिंग टू रिफॉर्म दिस, दे हैव डिसाइडेड कि लेट्स हैव मोर प्रैक्टिकल, मोर इनोवेटिव. फॉर एग्जांपल, अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में मैं 8th 9th में ज्योग्राफी पढ़ता था, तो हमने पढ़ा नेचुरल फिनोमिनन कैसे होते हैं, क्लाइमेट क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये चीजें हमने पढ़ी. लेकिन इनका जो इफेक्ट क्लाइमेट पे होता है, इनका जो इफेक्ट सॉइल इरोजन पे होता है, इस तरह की चीजें शायद हम लोग मिस कर गए हों. तो इस तरह से अगर ये चीज क्लासरूम में पढ़ाई जाए और उसको विजडम में कन्वर्ट किया जाए थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इट विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस. सिमिलरली अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्टोरिकल डेट्स, इवेंट्स हमें पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो लेसन्स लर्न्ड हैं उनसे, 87 में मेरठ में बड़ा हादसा हुआ, कुछ झगड़े वगड़े काफी हुए, मैं मेरठ में था उन दिनों, लेकिन अगर उस हिस्टोरिकल डेट से अगर हम कोई सीख ना लें और हम आगे चलें तो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग दैट नॉलेज. Till the time the knowledge is converted into wisdom, there's no point. Similarly, in the economics, we learn so many theories, so many concepts, so many models. But if we are not able to use this to manage our own house financial system, then what is the use of that knowledge, right? So therefore, it is very important to have a connect between the knowledge and its practical application of the knowledge, which is nothing like wisdom. Scientific theories and experiments, काफी चीजें पढ़ते हैं. केमिस्ट्री में मुझे याद है, हम जब 8th 9th में केमिस्ट्री पढ़ते थे तो जो पेट्रोल का फॉर्मूला है वो C8 होता है और जो डीजल का फॉर्मूला है वो C12 होता है, राइट? उस समय तो हमने रट लिया, पास हो गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर भी बढ़िया आ जाते थे. लेकिन अभी C8 के जलने से अगर वो प्रॉपर नहीं जलता है, अगर पेट्रोल ढंग से बर्न नहीं हुआ, तो आपको स्मोक में कार्बन मिलता है. ये शायद हम मिस कर गए. इसी तरह से डीजल, क्योंकि बड़ा कार्बन एटम है तो ज्यादा फ्यूल निकलता है. सो पॉइंट इज अगेन वी मिस आउट दैट पार्ट. सो इफ वी हैव ए करिकुलम where the theory is given with the practical examples of it, then it will lead to sustainable eco-friendly practices. Similarly, about the ethical principle and values, अगर हमें इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, रेस्पेक्ट, ऑनर, करेज, इस तरह की जो बातें, वैल्यूज होते हैं, अगर क्लासरूम में पढ़ाई जाती हैं, बहुत अच्छी बात है. बट अगर हमारी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ जो होती है उसमें हम इन चीज को नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आई मीन अगर आप अखबार खोल के देखेंगे तो आपको करप्शन के बहुत केसेस मिलते हैं और बड़े बड़े लोग जो है लिप्त रहते हैं. वो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी कहाँ जाती है नहीं मालूम है. सो पॉइंट इज, इफ देयर इज नो विजडम इन दिस नॉलेज, देन देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग दैट नॉलेज. एंड देयरफॉर सिमिलरली फॉर द सोशियोलॉजी, अगर हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे अलग अलग कल्चर्स हैं, अकॉर्डिंगली हमारे अलग अलग बिहेवियर हैं, अगर उनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और एक अच्छी संस्था, एक समाज को नहीं बनाते हैं, then there is no point in, and that is what the gap has been noted by the people, and therefore there has been an attempt to convert the knowledge into wisdom so that we as a community grow, right? अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी के बहुत पहलू होते हैं, right? एग्रीकल्चर, वाटर, सोशल, सिविल सोसाइटी, एजुकेशन, आर्ट, मीडिया, यू नेम इट. अगर आप देखना चाहें तो शायद आज मैं मॉर्निंग में जब ये लेक्चर के बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा कि सरकार अगर चलाती है तो सरकार मिनिस्ट्रीज बना देती है. तो सोसाइटी में हर जगह आपको कुछ ना कुछ इजाफा करना है, कुछ ना कुछ क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करनी है, और इस इंप्रूव करने के लिए एक मिनिस्ट्री हो गई. तो माय पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी व्हिच आई हैव लिस्टेड ऑन द व्यू फॉइल, आपको उसको इंप्रूव करने के लिए एक कम्युनिटी डेवलपमेंट की प्रैक्टिस चाहिए होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, सोशल डेवलपमेंट अगर करना है तो सोशल कोहेजन होना चाहिए, कल्चरल प्रिजर्वेशन होना चाहिए, कम्युनिटीज के बीच में भाईचारा होना चाहिए, और इस तरह की चीजें आपको क्लासरूम में जरूरी हैं आपको बताने. इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करने हैं तो लाइवलीहुड को कैसे इंप्रूव करेंगे, पॉवर्टी को किस तरह से हम दूर करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में,
इस तरह की चीजें को हमें स्कूल के करिकुलम में डालना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के फायदे क्या हैं? अगर आप वोट डालते हैं तो आपके वोट से किस तरह की चीजें सर देश में हो सकती हैं, ये इस तरह की चीजें अगर हमें स्कूल में पढ़ाई जाएं और तो हमारा जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा वो बेहतर होगा। वैल्यू एंड एथिकल सिस्टम, अगेन जो एथिकल एजुकेशन, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन राइट्स के बारे में स्कूल्स में पढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि एज ए समाज, एज ए कम्युनिटी, जो हमारे मूल्यों की जो भाषा है, जो मूल्य है हमारे, उनमें बेहतरी हो और एक हम ऐसे समाज की तरह दिखें ताकि जो दुनिया में देखे और बोलो कि हिंदुस्तानी जो है वो अपनी बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं। अगर आप कभी बाहर जाओ तो कभी कभी शायद एक मिसमैच होता है, उनको लगता है कि ये लेजी हैं, शायद उनको लगता है कभी कभी कि शॉर्टकट करते हैं। हमारा ट्रैफिक अगर आप देखें तो हम लोग बहुत इम्पेशेंट हैं। अगर हमारे सामने कोई गाड़ी खड़ी हुई है तो वी विल नॉट, हमने अपनी गाड़ी को आगे लेके जाना है। देयर सर्टेन प्रैक्टिसेस वी एज ए इंडियंस आर नोन ऑफ, एंड अगर वो एजुकेशन के थ्रू अगर हम उसको करेक्ट कर सकें अपने वैल्यू और एथिकल सिस्टम में, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। दैट इज व्हाट द एजुकेशन पॉलिसी हैज ट्राइड टू एड्रेस। जेंडर पैरिटी, अगर आप इंडस्ट्रीज निकाल के देखें तो हमारे जो विमेन हैं, इतनी ज्यादा तरक्की शायद उन्होंने नहीं की है। अगर आप देखते हैं रेशियो 50-50% होना चाहिए नेचर के हिसाब से, पर वो शायद नहीं है। तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं हमारे देश के अंदर जिसकी वजह से ये रेशियो 50-50% नहीं है। इसी तरह से अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, जो एनरोलमेंट रेशियो होगा तो यू विल फाइंड वुमेन आर लेसर। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव भी इधर ही मुजफ्फरनगर जिले में ही है, मेरी मम्मी का गांव। मैं गांव में जाता हूँ तो लड़कियां पढ़ती नहीं है वहाँ। लड़कियां बहुत पुराने टाइम पे, तो अभी तो शायद उन्होंने शुरू कर दिया बिकॉज स्कूल वगैरह खुल गए हैं, कॉलेजेस हो गए, बट एक टाइम था लड़का फिर भी अलाउड था कॉलेजेस स्कूल्स में जाने के लिए, लड़की के पास उतना एक्सेस नहीं था। हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ केयर का जो एक्सेस है, सैनिटेशन हाइजीन है, अगर ज्ञान नहीं होगा हमें about how to keep your own health, how to keep the health of your children, how to keep the health of your elders in the family, then as a community we will suffer. Similarly, environmental sustainability, environment की sustainability, जैसे मैंने बताया कि resources limited हैं, fossil fuels अगर आपको निकालना है तो वो limited ही हैं, पानी limited है। अगर उसका, मुझे एक बचपन की बात याद है, गांव की मैं बात जाता था तो बिजली अगर कभी कभी सरकार फ्री कर देती है, तो बिजली सरकार फ्री करती है तो गांव में कभी कभी किसान रात को उठ के मोटर को बंद नहीं करता है। उससे मैंने पूछा कि आपने मोटर नहीं बंद की है, तो कहते हैं नहीं नहीं बिजली तो फ्री है। कहने का ये मतलब है कि उस इंसान को ये एहसास नहीं है कि जिस चीज की जरूरत नहीं है, वो अगर ऊर्जा वो वेस्ट हो रही है तो एज ए कम्युनिटी वी विल सफर। सो इस तरह की चीजें लाने के लिए समाज के अंदर आपको एजुकेशन की बहुत जरूरत है। When we go onto the history, if we see the evolution of the mankind का जो evolution है और ये अवेयर करने के लिए ही मीटिंग होती रहनी चाहिए, लेकिन इस बात पे किसका ध्यान नहीं है। अभी भी बहुत जगह। So what I was coming to is in the community development, अगर हम community की development की बात करें तो बहुत टाइम से कम्युनिटी जो हमारी 70,000 साल पहले से और अभी तक हम कैसे हुए, लेट्स सी मैं आपको एक ग्लांस दिखाना चाहता हूं। हमारे यहाँ कॉग्निटिव रिवोल्यूशन कहते हैं उसको, 70,000 साल पहले हुआ। 70,000 साल पहले हम लोग हंटर्स हुआ करते थे, मतलब वो जंगलों में रहते थे बाकी एनिमल्स के साथ, और सबसे पहले हमने जो सीखा वो हमने कम्युनिकेशन सीखा, कम्युनिकेशन इशारों में सीखा। कुछ हमने ड्रिल्स बनाई समाज के अंदर कि आपस में एक दूसरे को बताने के लिए कि आप उस तरफ मत जाना, उस तरफ शेर है, शेर अगर होगा तो आपको खा जाएगा, राइट। सो जो हंटर्स के बीच में पहली चीज जो इंसान ने सीखी वो कम्युनिकेशन सीखी। कम्युनिकेशन, एक दूसरे के किस तरह से बात करनी है, राइट। वो कहते हैं कि गॉसिपिंग भी तभी से शुरू हुई। गॉसिपिंग शुरू हुई कि चलो उधर मत जाना, उधर शेर है, यू गेट माय पॉइंट। सो टूल्स बनाने सीखे धीरे धीरे अपने आप को शेरों से बचाने के लिए, क्योंकि उस समय हम लोग जो वो लैडर होता है इवोल्यूशन का, जिसमें इंसान सबसे ऊपर है आज की तारीख में बिकॉज ऑफ हिज ब्रेन, उस समय हम ऊपर नहीं थे, हम बीच में थे कहीं। सो उन्होंने फिर अपने आप को बचाने के लिए जब पहले कम्युनिकेशन सीखा तो फिर टूल्स बनाने शुरू हुए। लेकिन जो इंसान, जो कम्युनिटी, जो समाज वो इस चीज से महरूम रह गया, उसको बड़ा नुकसान हुआ। मिली भाई बेटे थोड़ी देर, यहाँ एग्जाम चल रहा है, उधर खड़े हो। So what I'm trying to tell you is कि the
in the cognitive revolution time as well, the education played a very important role, right, in saving the people. And then we had agricultural revolution. 10,000 साल पहले एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन आया. जो हंटर्स थे, जब उनको टूल्स बनाने आ गए और जब उनको लगा कि भाई वो खेती कर सकते हैं, तो वो नदी नालों के आसपास रह के आने शुरू कर दिया, गांव बसने शुरू हो गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई. उससे क्या हुआ? उस समय जिसने एग्रीकल्चर सीख लिया वो थोड़ा आराम से रहने लगे, लेकिन जिसने नहीं सीखा, अगर वो हंटिंग उसमें रह गया, तो फिर उसकी जिंदगी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी इंप्रूव नहीं हुई. देन वी हैड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. आप पहले एग्रीकल्चर सीखा, फिर मशीन्स बनानी आ गई लोगों को. जब मशीन्स बनानी आ गई तो लोगों को थोड़ी साइंस में, तो लोगों को थोड़ा साइंस का पता चल. एक वन सेकंड, सॉरी, आई हैड अ कॉल, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट कॉल है, सो आई हैड टू. सो देन वी हैड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर लोग बाग गांव से आके शहरों में बसने लगे. उस टाइम पे जो समाज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के फायदे नहीं उठा पाया, अपनी एजुकेशन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, ये चीज नहीं डाल पाया, वो पीछे लगे. थोड़ा नुकसान शायद हिंदुस्तान को भी हुआ उसमें, क्योंकि उस समय हम ब्रिटिश रूल के अंदर थे, तो बहुत ज्यादा फायदा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का हमारे देश को नहीं हुआ. जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, चाहे वो इंग्लैंड की बात करें, चाहे वो यूएस की बात करें, स्पेशली इंग्लैंड की मैं बात करता हूँ, उनको बड़ा फायदा हुआ इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, राइट. उसके बाद 20th सेंचुरी में टेक्निकल रिवोल्यूशन आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हुई, इंटरनेट आ गया, कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिटीज और थोड़े आसपास आ गई. तो जिन हम लोगों ने बड़ा फायदा उठाया इसका, हमने अपने अंदर जो एजुकेशन में आईटी को बहुत ज्यादा जोर दिया, तो हमारे जो आईटी की वो आईटी हब्स बनने लगे. टुडे वी हैव आईटी हब इन बैंगलोर. यू गेट माय पॉइंट. सो कहने का मतलब ये है कि जैसा, और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेंचुरी है. अभी जितना भी मार्केट है, अभी जो हम ह्यूमंस हैं उसकी जगह मशीन्स लेने वाली हैं. हो सकता है कल के बाद, कुछ दिन के बाद, अगर गरिमा मैडम लेक्चर कराएं, तो हो सकता है एक मशीन बैठ के इस तरह का लेक्चर ले सके. कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे हम इवोल्यूशन हमारा हुआ है, साइंस ने तरक्की करी है, या किसी रिवोल्यूशन की वजह से कुछ भी चेंजेस आए हैं, तो वो जो समाज है उसने अगर अपना एजुकेशन सिस्टम को करेक्ट नहीं किया, तो वो समाज पीछे रह गया है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अलाइन योर एजुकेशन सिस्टम with the community needs, and if you don't do this, your community will suffer, right? As I said, जो British education थी वो हमारे को, that was focused mainly on making of clerks and administrators, right? So therefore we could not get the full benefit of the technology and industrial revolution. And agricultural reforms हमारे बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे उन दिनों, because उनको बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में उनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं था, right? एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस साइंटिफिक रिसर्च हुई, आईटी हब्स बने, और हमने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे भी मेहनत की. माय पॉइंट इज कि यस, वी नीड टू हैव आवर एजुकेशन अलाइंड कंप्लीटली विद द जो, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करना चाहें, तो हाउ डज द एजुकेशन इफेक्ट ए कम्युनिटी डेवलपमेंट, राइट? से फॉर एग्जांपल, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, व्हिच हैज गॉट अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द कम्युनिटी डेवलपमेंट. पेरिस में एग्रीमेंट हुआ, कॉम्बैट, जो अपनी जो क्लाइमेट चेंजेस है उनको कॉम्बैट करेंगे, लेकिन जो कम्युनिटीज हैं, अगर उनको मालूम ही नहीं है कि क्या एक्शन लेने से जो ग्रीन हाउस के एमिशंस हैं वो कम होंगे, तो वो क्यों करेगा?
अगर गांव में उसको लड़के को मालूम ही नहीं है कि मेरे ट्रैक्टर की जो है उसकी सर्विसिंग करानी है इंजन की, अगर इंजन की सर्विसिंग नहीं कराई तो मेरे जो स्मोक में कार्बन का कंटेंट ज्यादा होगा और उसकी वजह से मेरे जो गांव के बच्चे हैं उन्हीं को सांस लेने में और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत होगी, तो ही विल नॉट डू दैट। सिमिलरली डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारी बड़ी अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनी हुई हैं। अगर किसी तरह की आपदा आती है, हाउ डू वी हैंडल इट, लेकिन अगर वो एजुकेशन नहीं है, अगर आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट को एज ए सब्जेक्ट कवर नहीं किया जाता है, देन ही वोंट गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस। सिमिलरली हेल्थ एंड हाइजीन के अंदर हमारे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल हेल्थ मिशन है, उन्होंने काफी कोशिश की है, लेकिन अगर हमारा गांव का ग्रामीण व्यक्ति, लेडी और मेन, अगर उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशानी है डॉक्टर के पास जाने में, उनको लगता है कि नहीं दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड मनी, देन ही विल नॉट गो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर द पीपल टू नो इफ अगर किसी तरह की बीमारी अगर उत्पन्न हुई है तो उसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। सिमिलरली द जेंडर इक्वलिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट, हम कितनी भी पॉलिसीज बना लें, कितनी भी हम प्रोसीजर्स बना लें, कितने भी हम संशोधन ले आए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वेरियस एम्पावरमेंट, बट टिल द टाइम द कम्युनिटी, यू एंड मी, are responsible for this, till we are educated that women of your community has got equal right in the terms of she should get the equal opportunity। जरूरी नहीं है कि वो वैसे काम करें जो जिसमें शक्ति की ज्यादा जरूरत होती है, बट एक अपॉर्चुनिटी बराबर की मिलनी चाहिए। 50% अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, मतलब अपॉर्चुनिटी जो बेहतर है वो ले सकता है, बट अपॉर्चुनिटी मिलने की बात जो है बहुत जरूरी है। तो दैट इज व्हाट द विमेन एम्पावरमेंट इज ऑल अबाउट। फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जन योजना है, लेकिन अगर उस गांव में कुशल पाल सिंह को वो बैंकिंग ही नहीं है तो उसको प्रधानमंत्री जन धन योजना का पैसा कैसे मिलेगा? सो उसको बहुत जरूरी है ये बताना कि हाउ डू यू ओपन ए बैंक अकाउंट एंड सो दैट द मनी कम इनटू यू। सिमिलरली मनरेगा, रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई 100 दिन के वेजेस होंगे आपके पास, लेकिन अगर उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं है, he is not even taught, he is not even know वो ट्राइबल है, किसी गांव में रहता है, किसी छोटे से, वहां इस तरह की नॉलेज ही नहीं है। अगर आप अंडमान निकोबार जाएं तो आपको पता लगेगा, लोगों से बात करेंगे तो बहुत ऐसी पॉलिसीज हैं, ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, लेकिन वो पहुंचे ही नहीं है क्योंकि उनके पास एजुकेशन का जरिया नहीं। Similarly for the sanitation and cleanliness, sustainable agriculture, my point is, एक कम्युनिटी को अगर आप लें, उस कम्युनिटी का डेवलप करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए किसी भी डोमेन के अगर आप देखते हैं तो हर डोमेन में आपको एक एजुकेशन विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर एजुकेशन से सोसाइटी आपकी एजुकेटेड होगी तो जो भी प्रोसीजर्स, पॉलिसीज डेवलपमेंट की होंगी तो उसमें उसका पूरा फायदा आपकी कम्युनिटी को होगा। ये जैसे अगर हम बात करें, एक छोटा सा मैंने डाला है, मेम डाला है, इसके अंदर आप देखिए कि वो दो भिखारी हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि जब से ये नेट बैंकिंग आई है, जब से ये इंटरनेट आया है, क्रेडिट कार्ड आया, डेबिट कार्ड आया, हमारा बिजनेस तो ठप हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो अर्बनाइजेशन है, जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उससे समाज के ऊपर कुछ गलत इफेक्ट भी हो रहे हैं, राइट? हम उनकी बात करेंगे और उनको भी अरेस्ट करने के लिए, उनको भी ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है एजुकेशन के अंदर उन चीजों को डालें। फॉर एग्जाम्पल मॉरल वैल्यू एंड एथिकल सिस्टम, राइट? कहते हैं कि जो मेटलाइजेशन है, जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उससे मेटलिस्टिक वर्ल्ड होती जा रही है, स्वार्थ जो है लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा है। सही बात है। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर वैल्यूज लाइक एम्पैथी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह की चीजों का एजुकेशन के अंदर राइट फ्रॉम स्कूल डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजिकल बैलेंस, आजकल क्या हर देश, चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो चाहे वो डेवलपिंग नेशन हो, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, चाहे वो ऊर्जा का हो चाहे वो पानी का हो, उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट? ऑब्वियसली तरक्की के लिए अगर डेवलपिंग करनी है तो आपको रिसोर्सेज आपको एक्सप्लॉइट भी करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हमारे पास एनवायरमेंटल एजुकेशन नहीं होगी जिसके अंदर हम लोगों को बढ़ाएं कि नेचर को अप्रिशिएट करना है, जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना है और ऐसी प्रैक्टिसेस को डालना है जिससे नेचर आपका सस्टेन करे लंबे टाइम तक, तब आपका एजुकेशन पूरी नहीं होगी। जो कम कराया जाता था, फॉसिल फ्यूल कंजप्शन, जिस हिसाब से हमने पेट्रोल, डीजल, गैस, कोल, इनका जो एक्सप्लॉयटेशन किया है, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आज के टाइम पे गर्मियां बहुत बढ़ गई हैं, एसीज बहुत चलते हैं,
और उसको अगर ऑल्टरनेट फ्यूल को यूज करने की जो एजुकेशन है अगर वो स्कूल कॉलेजेस में डाले जाए, तो आपकी जो गवर्नमेंट है, चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कितने ही कानून लेके आ जाए, कितनी ही पॉलिसीज लेके आ जाए, आप लोग तब तक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट, जब तक एक जो हमारी कम्युनिटी है उसको इस चीज के बारे में मलाओ। नेचुरल डिजास्टर्स वंस अगेन, बिकॉज ऑफ ऑल दिस द डिजास्टर व्हिच आर हैपनिंग अराउंड अस, जो आपदा आती हैं वो भी इसीलिए आती हैं। ऑब्वियसली नेचर के साथ आप थोड़ा सा फिडल करोगे, फिंगर करोगे नेचर को, नेचर भी वापस आपको देता है। कहते हैं ना कि आजकल जो हिमाचल के अंदर बहुत बाढ़ आई हुई है, क्यों? कहते हैं कि जो स्नो जहां पड़ती थी वहां बारिश होने लगी। बारिश क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, द ग्लोबल वार्मिंग। अब उसकी वजह से अगर गर्मी हो रही है तो हिमाचल में देखो बारिश आ गई है। सो ये बहुत जरूरी है आज की जनरेशन को ये जानना कि आपको क्लाइमेट को उसी तरह से, रिसोर्स को, अगर घर में लाइट बंद करने की प्रथा है, पानी बंद करने की प्रथा है, जो ऑल्टरनेट फ्यूल है उसको यूज करने की अगर इस तरह की चीजें अगर बताई जाती है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट। सिमिलरली टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ये जो चीजें एक नई सी चीज आई हुई है, ये भी इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द चेंजिंग वैल्यू सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। ये चीजें भी एजुकेशन को हमको स्कूल में डालना पड़ेगा। हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कैन बी इम्प्रूव्ड। साइबर सिक्योरिटी इज अनदर मेनेस, अनदर टेरर व्हिच हैज कम इनटू अस। ऑब्वियसली आपकी जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल, अगर साइबर सिक्योरिटी अगर आपके पास ना हो तो आपके, आजकल हम देखते हैं कि बैंकिंग के अंदर बहुत फ्रॉड होते हैं, और अगर ये हमारे जो लड़के हैं, गांव के हैं या शहर के भी रहने वाले हैं, अगर उनको नहीं पता होगा इन फ्रॉड्स के बारे में, इफ दे आर नॉट कीपिंग देयर बैंक एप्स सिक्योर, then they will lose it. And how this will happen? This will happen only through the education, right? So what I'm trying to say is कि गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स भी लेके आए हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट मेहनत नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत की है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चलाई हैं जिसके अंदर कम्युनिटी का डेवलपमेंट, राइट? कुछ स्कीम्स तो बहुत हिट हैं क्योंकि उनका फायदा हुआ है, और कुछ स्कीम्स शायद इतनी हिट नहीं है क्योंकि उनका फायदा नहीं हुआ है। आप देखेंगे जो स्कीम्स जिसमें एजुकेशन नहीं थी कम्युनिटी के पास, वो स्कीम सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और जिस स्कीम्स में कम्युनिटी के पास नॉलेज थी, नॉलेज पहुंचाई गई थ्रू सम मीन्स, वो स्कीम्स हमारी थोड़ी बेहतर भी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया काफी सक्सेसफुल रहा है। अगर आप देखें तो आजकल कहीं भी पैसे का जो आदान प्रदान है थ्रू बैंकिंग ऐप हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो स्किल्स लोगों ने एक्वायर कर लिए, राइट? जो बेसिक, जिनके पास थोड़ी सी भी लिटरेसी है, बहुत थोड़ी सी लिटरेसी, उन्होंने ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, ये सारी चीजें उन्होंने सीख ली हैं। स्वच्छ भारत अभियान एक सक्सेसफुल है। एक टाइम था शायद हिंदुस्तान को माना जाता था कि बहुत ज्यादा हम लोग सफाई की तरफ कॉन्शियस नहीं है, बट अवेयरनेस प्रोग्राम जो एग्जीक्यूटिव ने चलाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, तो आज अगर हम देखें तो वेस्ट पेपर, जो वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो हमारे देश में प्रॉपर हुआ है। वो इसलिए बिकॉज घर घर में जाके लोगों को बताया गया कि भाई आपको जो मोहल्ले की सफाई की जिम्मेदारी भी आपकी अपनी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें भी लोगों के जो बैंक्स हैं, काफी नए नए लोगों ने बैंक्स खोले हैं, और जिसकी वजह से जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की जो सुविधा है और जो फायदा मिला है वो भी बताते हैं काफी मिला। इसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर एक टाइम तो हमारा जो एजुकेशन था विमेन का बहुत कम था। अभी मैं गांव जाता हूँ, चाहे मैं अपने बुलंदशहर में गांव जाऊं या इधर की तरफ आऊं, तो दोनों गांव में मैंने देखा है आजकल लड़कियां स्कूल जाती हैं। पहले गांव में स्कूल नहीं था हमारे पेरेंटल विलेज में, अभी वहां मेरे घर के बराबर में स्कूल है। तो ये देख के बढ़िया लगता है, और उसमें लड़कियां बैठी रहती हैं, छोटी छोटी बच्चियां। सो कहीं ना कहीं कोशिश जरूर हो रही है कि कम्युनिटी को एजुकेशन के साथ जितना ज्यादा मिलाया जा सके उतना बढ़िया। और ऑब्वियसली अगर हम सब पढ़ेंगे तो एज ए नेशन विल डेफिनेटली गेट इम्प्रूव। दीज आर द प्रोग्राम्स जहां हमको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, बिकॉज स्किल इंडिया का प्रोग्राम था कि लोगों को ऐसी स्किल दी जा सके, ताकि वो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि उनको एम्प्लॉयबिलिटी मिले। हो सकता है इसका नुकसान इसलिए हुआ हो बिकॉज हमारे जो करिकुलम था उस करिकुलम के अंदर प्रैक्टिकल जो पार्ट था, इंटर्नशिप वाला पार्ट, वो बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं था। डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव्स, हालांकि हमने डिजिटल इकोनॉमी में काफी इंप्रूवमेंट किया है, पर जो डिजिटल लिटरेसी है वो अभी भी शायद थोड़ी सी हम पीछे रह गए हैं। आज के टाइम पे जो हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जैसे मैं आपको एक क्लास ले रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, ये अगर बहुत जगह जगह पहुंचाना पड़े या ट्रेनिंग या स्किल पहुंचानी पड़े तो शायद नहीं हो पाती है, बिकॉज अभी भी लोग बाग जो है डिजिटली लिटरेट नहीं है। इसी तरह से हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स
हमारे देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी हेल्थ अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है, और लोग बागों की जो जो लिविंग जो एवरेज लाइफ है, स्पैन है, वो थोड़ा कम है। वो इसलिए बिकॉज लोगों को शायद जानकारी बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं है। सिमिलरली सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रैक्टिसेस अगर हम बात करते हैं, वेस्टर्न यूपी की भी अगर हम बात करें, तो हमारी बड़ी फर्टाइल लैंड है, लेकिन अगर आप सच में देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक ही तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम लेके चल रहे हैं। टाइम ये आ गया कि आज के टाइम पे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, और पेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, इस तरह की हमारे पास सुविधाएं हैं। ये अगर हम अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में अगर हम डालें तो उसका ज्यादा फायदा हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी होगा, एंड वेयर एवर वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस विल डेफिनेटली इम्प्रूव। अगर हम कम्युनिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनसे कम्युनिटी डेवलप होती है? आइडियल प्रिंसिपल्स ऑफ ए कम्युनिटी डेवलपमेंट, विल जस्ट सी दिस बिकॉज द फर्स्ट इज एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन। एक कम्युनिटी तभी डेवलप होगी जब उसके जो लोग बाग हैं उस कम्युनिटी के, वो सभी एम्पावर होंगे, उनके पास क्षमताएं होंगी, और वो उन क्षमताओं के साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट वन, एंड हियर अगेन द एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर ये सिद्धांत है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, तो यू कैन सी एजुकेशन इस कम्युनिटी डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इज सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिविलिटी, कि कोई भी हम ऐसा काम करें वो सस्टेनेबल रहो। बिकॉज मैंने कहा जैसे नेचर में रिसोर्सेज हैं, अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं रिसोर्स ही खत्म हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात नहीं होगी। सस्टेनेबल होना चाहिए एंड इंक्लूसिव होना चाहिए। समाज का हर हर समाज का हर पहलू, हर इंसान, चाहे वो मेन हो, विमेन हो, डिसेबल्ड हो, किसी भी कम्युनिटी के हों, उनको सभी को उसके अंदर इंक्लूसिव होना चाहिए। कैपेसिटी डेवलपमेंट, जो हमारी समाज है उसकी जो स्किल्स हैं और उसकी जो नॉलेज है, उनको बढ़ाने की जिम्मेदारी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और इसको बढ़ाने के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव द एजुकेशन इन अवर, एंड देन फाइनली कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। जो कम्युनिटी है, अगर सपोज करो वेस्टर्न यूपी की अगर हम बात करते हैं, तो वेस्टर्न यूपी की जो अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट है, चाहे वो हेल्थ केयर से हो, चाहे वो विमेन एजुकेशन से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, जब तक वो वेस्टर्न यूपी की यूनिवर्सिटीज के अंदर उन बच्चों को वो नहीं पढ़ाया जाएगा तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो एक कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी तरह से तभी उन्होंने थोड़ा सा जो चेंजेस किए हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और कोर सब्जेक्ट्स को अलग अलग किया है, तो एक स्टूडेंट उन सब्जेक्ट्स को भी ले सकता है जिससे उसके समाज का, उसके आसपास के जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसके अंदर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट collaboration between the government, the NGOs and the communities is very central to the development of this. Then we have equity. Equity मतलब सबके पास एक्सेस बराबर होना चाहिए। अगर हम colonial टाइम की हम बात करते हैं तो कुछ हम सुनने में आता है कि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ इंडियंस आर नॉट अलाउड। सो सोचिए आप कैसी संस्था में हम रहते हैं जहाँ हम अपने देश के अंदर ही हमें एक मौका नहीं मिलता था कहीं जाने का या किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का, राइट? अभी भी इस तरह की चीजें। तो जैसे विमेन है, अच्छा विमेन को कॉलेज जाना अलाउड नहीं है, तो इक्विटी इज नॉट देयर। सो इस तरह का जो समाज है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। द समाज wherein the equity is not the principle, that community will never prosper, right? So therefore the equity is very important. So the development should address the needs of all marginalized. कहते हैं ना कि दलित हैं, ये इस ट्राइब्स के हैं, इनको पढ़ना अलाउड नहीं है, किस तरह की चीजें थी हमारी जो गलत प्रैक्टिसेस थी हमारे समाज के अंदर, जिसको धीरे धीरे हटाया गया है, उनको और जरूरत है बिल्कुल हटाने की। एंड एजुकेशन के अंदर तो बहुत जरूरी है कि एक्सेस सभी को मिलना चाहिए। एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आज टेक्नोलॉजी जो थी वो एआई बेस्ड नहीं थी, अभी टेक्नोलॉजी जो है एआई बेस्ड हो गई है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर ड्राइवरलेस कार आएंगी, जो मशीन्स हैं वो ज्यादा काम करेंगी। सो एजुकेशन का उसके साथ अलाइन होना बहुत जरूरी है। द कम्युनिटी शुड टेक ओनरशिप ऑफ इट ऑल्सो। द कम्युनिटीज दे शुड डिसाइड कि भाई हमें वेस्टर्न यूपी में हमें कौन सी चीजें चाहिए जिससे हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा। सो दैट इज द ओनरशिप, and they can do and project these kind of requirement only if they are aware of the various facets of quality of life. Adapt to changing technology, as I brought out, कि जैसे जैसे सारा जो डेवलपमेंट हमारे आसपास हो रहा है,
ये जो डेवलपमेंट है, ये सारा डेवलपमेंट इज ड्रिवन बाय द टेक्नोलॉजी. And if you don't know the technology, if you don't know the AI today, if you don't know the use of internet today, if you don't know use the communication today, then you will leave behind. आप पीछे रह जाएंगे, आपका समाज पीछे रह जाएगा. So it is very important right from the college days. कहते हैं ना कि ये जो अभी नया शुरू हुआ है इनका 5+3+3+4, उसके अंदर कोडिंग 6 क्लासेस शुरू करा देंगे, 6 साल की उम्र से शुरू करा देंगे. Why? Because that is the requirement of the today. अगर आज की तारीख में हिंदुस्तानी बच्चा कोडिंग जल्दी से नहीं पढ़ेगा तो he will be left behind in the global thing. So I have in this part of my talk, मैंने आपको स्ट्रेस किया इस बात पे कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है. चाहे वो कम्युनिटी डेवलपमेंट की प्रिंसिपल से बात करें, या आप हिस्टोरिकली ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें, या फिर आप हमारे अपनी देश की बात करें, या सिर्फ समाज की बात करें, तो एक चीज हमने नोट की, अगर कम्युनिटी डेवलपमेंट करना है तो उसमें समाज का पढ़ा लिखा होना, समाज को जो कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस हैं, साइंस हैं, टेक्नोलॉजी हैं, उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है. एंड सो देयरफॉर we can clearly establish this hypothesis, yes, education is very important for the community development. Having seen then in the first part, yes, education is very much required. In second part of my talk, I will tell you how the Indian government has addressed this requirement of education through the improvement of the quality in the education. हमने कोशिश की 2018 में एक पेपर बनाया, उसमें हमने कोशिश की क्वालिटी इंप्रूव करने की, and then 2020 we published a national education policy, right? With this, I come to the end of my first part. Now I'll cover the second part of it, right? I have already taken around 45 minutes. I will take another 40 to 45 minutes to cover this part of my talk. Garima madam, can you hear me? Hope my presentation is being seen by all. I'm very much listening here. You? Oh, thank you very much. I mean, I thought you slept. मुझे लगा आप सो गई हैं. नहीं. Okay. Thank you very much. If you permit me, can I have a glass of water? I've been speaking and because of this voice, मैंने यहाँ थोड़ा सा पंखा भी बंद कर दिया था. गरिमा मैडम, एक्चुअली जब मैं when I was a student, I joined MSc. तो इन्होंने क्या किया, गरिमा जी ने मेरे को रैगिंग होती थी कैंपस में उन दिनों, अभी तो बंद है. तो इन्होंने सामने खड़े करके मुझे कहती हैं कि आप गाना गाइए. सो मैंने कहा मुझे गाना तो नहीं आता, तो बट स्टिल शी फोर्स मी टू सिंग अ सॉन्ग, राइट? एंड टिल डेट दैट वाज आई थिंक 87, 86. एंड अभी भी ये जो भी डिफिकल्ट सा काम होता है वो मुझे फोन करके कहती हैं कि संजय यू हैव टू टेक अ कॉल, टॉक ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. सो ये जो रैगिंग का हमारा सिलसिला शुरू हुआ था 86 से, वो अभी तक चल रहा है, राइट? सो आई विल कम टू दिस. It continue further also. Okay, no problem. No problem. It's always a pleasure to talk to teachers and faculties and all that. I hope people are getting some part of it and some kind of a motivation that they are the one who are the torch bearers for the community development. The teachers who are listening to me, I will tell you, you will be the one who will shape the society tomorrow. Not the politicians, not the executives, not the administrators. If the teachers together understand this NEP and ensure it is implemented in letter and spirit, I am sure जो देश निर्माण हमारा है, जिसकी कोशिश हम सब कर रहे हैं, it will be a phenomenal thing, right? I come to the second part of my talk. In this part of the talk, I'll talk about the national education policy. इसमें हम sustainable development goal की बात करेंगे, ये थोड़ी theoretical है. In the second part, 2018 के अंदर हमारी सरकार ने, हमारे जो प्रेसिडेंट, उन्होंने एक क्वालिटी मैंडेट बनाया हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए. अच्छा, मैंने जब गरिमा मैडम ने मुझे ब्रोशर दिया, उसमें शायद किसी स्पीकर ने इसके ऊपर ऑलरेडी बात की हुई है. बहुत अच्छी बात है, मैं इसको थोड़ा सा कम कवर करूंगा. लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी इन द एजुकेशन. इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन किए गए और कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए, उनके बारे में हम ब्रीफली कवर करेंगे. मैं सिर्फ उस जगह कवर करूंगा जो कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वो मैंडेट क्वालिटी का जो community development से related है. I'll cover that. In the third part, because of this, then we had the NEP. NEP का vision क्या था? NEP के principles क्या थे? NEP में हमने क्या किस चीज को एड्रेस किया, वो हम थोड़ा सा बात करेंगे.
एंड यहाँ भी मैं पूरी एनईपी की बात नहीं करूंगा. I will talk only of that portion of the NEP which has a bearing on the community development. And finally, I will also cover how the community development is being addressed with the NEP. And आखिर में मैं आपको आर्मी का जो एक 3-4 स्लाइड्स दिखाऊंगा. इसमें आर्मी में अगर कोई स्किल को डेवलप करना है तो किस तरह से करते हैं. I will give you as an example that if some skill has to develop in an officer, how do we address that requirement? That I will cover in the last 3-4 slides, right? So SDG, Sustainable Development Goal, UN mission, जो UN है, UN ने डिसाइड किया 2015 में, ये करते रहते हैं कि भाई समाज को इम्प्रूवमेंट करना है, समाज के लिए कुछ ऐसे गोल्स बनाने हैं जिससे समाज में तरक्की हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो. ये ओवरऑल और जो भी यूएन के देश थे सभी के ऊपर लागू करने की बात हुई. ये 2015 में हुआ और उसमें एक गोल था, गोल नंबर 4, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4. वो गोल था टू इंश्योर इंक्लूसिव मतलब सभी लोग समाज के, इक्विटेबल बराबर की अपॉर्चुनिटी, टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल quality education and promote lifelong learning opportunities for all. ये गोल बनाया गया, राइट? क्योंकि हम भी यूएन के मेंबर हैं और बहुत एक्टिव मेंबर हैं, तो हमारे लिए भी एक गोल बना और वो एम दिया गया 2030 तक का. उसमें सब क्वांटिफाइड वो थे कि समाज को अगर आगे लेके जाना है तो किस तरह से एजुकेशन को एड्रेस करना चाहिए. और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 17 SDGs थे, 17 गोल्स थे और जितने अगर आप बाकी 16 को देखेंगे वो भी डायरेक्टली एजुकेशन से अफेक्टेड. तो दिस SDG 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इनके जो टारगेट्स हैं जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं, इन टारगेट्स को देखेंगे तो इन टारगेट्स में बहुत जरूरी है कि प्री प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल और वोकेशनल एजुकेशन, ये सारी की सारी सभी के लिए इंश्योर कर दिया है कि जितने बच्चियां हैं, जितने बच्चे हैं, सभी को फ्री, इक्विटेबल एंड क्वालिटी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिले. सभी को प्री प्राइमरी एजुकेशन भी फ्री में मिले. प्री प्राइमरी मतलब 5 साल से पहले, एंड तभी वो 5+3+3 में ज्यादा घुसूंगा नहीं उसके अंदर, बिकॉज आई एम श्योर पीपल आर कवरिंग दैट. सो जो फर्स्ट 5 है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एज 3, बिकॉज कहते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो 5 या 6 साल तक काफी तक हो जाता है. तो इसीलिए यूएन ने डिसाइड किया, WHO ने, एंड देयरफॉर दिस हैज बीन गिवन टू इंडिया एज वेल, एंड देयरफॉर वी आल्सो अलाइंड आवर एनईपी एज पर दिस. Equal access to affordable technical, vocational and higher education. Equal access. कोई भी इस एजुकेशन को लेना चाहे तो he should be given the equal access. इस तरह की प्रावधान, इस तरह की पॉलिसी, इस तरह का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो ताकि जो इसमें पढ़ना चाहें वो लोग उसमें पढ़ पाएं. Elimination of gender disparities. Basically, men and women should get equal chance. And finally, the target of the Sustainable Development Goal was क्वालिटी एजुकेशन, कि क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है एजुकेशन के अंदर. सो हमारी जो इंडिया है, हमने भी ये सोचा कि यस वी विल आल्सो, और हमारी जो पॉलिसी बनी उस पॉलिसी के अंदर भी बहुत सारी चीजें इन्होंने डाली हैं. और सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वालिटी की. तो क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या किया उसकी बात करेंगे, एंड देन वी विल शॉर्टली कवर द एनईपी एज वेल, राइट? जो हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी है, ऐसा नहीं कि एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास थी नहीं, 1968 में बनी, 86 में बनी, फिर उस पर मॉडिफिकेशन आया, फिर हमने राइट टू एजुकेशन बनाया, काफी हमने राइट फ्रॉम 1947 राधाकृष्णन कमेटी हुई थी, एक बार कोठारी कमीशन बैठा था, काफी कमीशंस बैठे हैं, तो कंटिन्यूसली हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है. लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डोमेन्स थे which were left out, and therefore the need was felt. Healthcare, sanitation and hygiene, gender equality, digital divide, sustainable agriculture, environmental awareness, income disparities, ये जो कुछ चीजें हैं जो मैंने लिखी, इसके अंदर ये देखा गया कि हम एज ए नेशन वी आर नॉट डूइंग वेल, राइट? एंड वो इसलिए क्योंकि इन चीजों को हमारे एजुकेशन के जो करिकुलम के अंदर बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी हमें नहीं मिलती थी, बहुत ज्यादा हमें इन बातों को नहीं सिखाया जाता था. तो पॉसिबल अब एग्रीकल्चर के बारे में अभी हमने भी पढ़ाई की है, मैंने MSc फिजिक्स किया जैसे गरिमा मैडम ने, मैंने कभी एग्रीकल्चर के बारे में तो शायद नहीं पढ़ा है, राइट? फाइन, बट देन आई कैन बी गिवन, आई एम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बेल्ट. अगर मुझे एक ऑप्शन मिले
कि भाई आपके पास एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आप रख सकते हैं सॉइल के ऊपर, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। अगर मैं वो रख लूँ तो क्रेडिट स्कोर भी मिलेगा, नंबर भी मिलेंगे, और अगर आपके नंबर अच्छा आ गए तो ओवरऑल आपको फायदा भी होगा। और साथ में मैं अपने गाँव में जाके अपने जो बुजुर्ग हैं उनके साथ उसको शेयर भी कर सकता हूँ। सिमिलरली एनवायरमेंट अवेयरनेस, अगर मेरे पास एक ऐसा सब्जेक्ट हो कि मैं एनवायरमेंट अवेयरनेस के बारे में पता कर सकूं, मुझे वो 2 क्रेडिट का है, कुछ मुझे क्लासेस अटेंड करनी है, कुछ मेरे को उसमें प्रैक्टिकल करना है। एंड इफ आई गो बैक टू माई विलेज एंड टेल पीपल दैट व्हाट यू डूइंग इज रॉन्ग, then definitely I myself was not educated, so how will I go and educate my folks, my community? So we found कि इन कुछ डोमेन के अंदर हमारा जो एजुकेशन का था वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं था हमारी क्लासेस के अंदर। एंड देयरफॉर अगर हम इंडिसेस की बात करें, आजकल सब कुछ क्वांटिफाइड है, तो हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स एंड डिजिटल इंक्लूजन इंडेक्स, ये कुछ इंडिसेस मैंने, और भी हैं काफी इंडिसेस, इन इंडिसेस के अंदर ग्लोबल लेवल के ऊपर हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, राइट। सो देयरफॉर इसका मतलब कि कम्युनिटी डेवलपमेंट में इन कुछ 4-5 डोमेन के अंदर हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। अगर हम लैक कर रहे हैं और उसी टाइम पे ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है, हम देख रहे हैं कि कुछ किसी जगह हम थोड़ा पीछे हैं, किसी जगह हम आगे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की मैंने बात की। अच्छा, अभी बात हो रही है 21st सेंचुरी स्किल्स की बात होती है, आजकल बात कर रहे हैं 21वीं शताब्दी में क्षमताएं का सेट अलग होना चाहिए, और उन क्षमताओं को पढ़ाने के लिए स्कूल में अगर आप लोग उनको करिकुलम में कवर नहीं करेंगे, देन अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। नेशनल एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ये भी बढ़ती जा रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे वो बिजनेस की बात करें, चाहे वो साइंस की बात करें, किसी भी चीज को डोमेन को लो तो आज एक ग्लोब के ऊपर एक कॉम्पिटिटिवनेस चल रही है। चाइना हमारे साथ कॉम्पिटिशन में है, हमारा नेबरिंग पाकिस्तान भी, वो भी कॉम्पिटिशन में लगाने कोशिश में रहते हैं। और ऑब्वियसली टुडे अगर हमें ग्लोब पे कॉम्पिटिटिव करना है तो हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो कम्युनिटीज हैं, उनको डेवलप होना बहुत जरूरी है, राइट। सो इनको देखने के बाद जो हमने, जो हमारी रिसर्च की टीम थी, जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, वो एक्सपर्ट्स बैठे और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि कौन सी ऐसी मेजर ड्रॉबैक्स हैं अभी के एजुकेशन सिस्टम के अंदर जिसकी वजह से हमको थोड़ी परेशानी आ रही है, राइट। सो वो रोट लर्निंग एम्फेसिस, वो कहते हैं ना कि जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे रट्टा मार के पास हो जाओ, आपको सिर्फ वहां जाके मेरे को याद आता है हमारे टाइम पे एक चित्रा कुंजी चलती थी, पर आई डोंट नो वेदर इट इज स्टिल देयर और नॉट। सो लोग क्या करते थे, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी, वो अपना कुंजी पढ़ी छोटा सा, उसको रटा और जाके एग्जाम में लिख के आ गए। एग्जाम से 2 दिन के बाद अगर आप उस बच्चे से उसके बारे में पूछ लो, उसको कुछ नहीं याद हो। टुडे ऑल्सो इफ आई आस्क ए स्टूडेंट what is the use of energy in your day-to-day life, what is the formula for force, what is the formula for work, he will not be able to answer it अगर उसको रट के पास हुआ है। अगर उसको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उस कॉन्सेप्ट को आपकी डे टू डे लाइफ में कैसे डालना वो समझ में आ गया, then he will not require, and that was the thing which was missing, lack of holistic development। हम मतलब वी वर फोकसिंग ऑन साइंस में जा रहा है तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा कॉमर्स में जा रहा है तो अकाउंटेंट बनेगा, आर्ट्स में है तो शायद टीचर बन जाएगा, राइट। दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट वी हैड। एंड सिमिलरली हमारा जो रिपोर्ट कार्ड होता था, उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपके 40%, 50%, 60%, 70% नंबर होते थे, और 2 लाइन का आपके बारे में लिखा जाता था कि ये स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि रखता है, बातचीत बहुत करता है, एंड स्कूल में थोड़ा सा बंक मारता है। लेकिन जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, आपकी जो क्षमताएं हैं वो आपकी कॉग्निटिव डोमेन में भी हैं, दिमागी क्षमताएं हैं, इमोशनल डोमेन में भी हैं, whether you're emotionally intelligent or not। क्या टाइम देना, थोड़ी देर जरा देखो। आपके सोशल डोमेन में भी हैं। सो आपका जो एक डोमेन है आपके आसपास, यू गॉट ए कॉग्निटिव डोमेन, you got an emotional domain, you got a social domain, and there are all competencies in this domain। इन्हीं क्षमताओं को अगर आपको बढ़ाना है तो आपके करिकुलम में ये सारी चीजें होनी चाहिए जो शायद नहीं थी। इनफ्लेक्सिबल करिकुलम, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते, आप अगर कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं, अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आप फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। सो इस तरह का एक करिकुलम बनाया गया। सो ऑब्वियसली आप बिल्कुल रिजिड हो गए। मतलब आज जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स मैंने की है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने एमएससी की है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक भी किया है,
लेकिन मैं जो बातचीत कर रहा हूँ वो सोशियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो इट इज बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है, मैंने थोड़ी पढ़ाई की तो शायद मैं बहुत बात कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप एज ए इसको रिजिड बना दें कि नहीं आप तो साइंस के स्टूडेंट है, यू कांट टॉक ऑन सोशियोलॉजी, दिस इज नॉट योर डोमेन। सो उस तरह का जो इनफ्लेक्सिबल करिकुलम है दैट वाज रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर, वो थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव था, स्किल गैप था। जो क्षमताएं हैं 21वीं शताब्दी की, आज के टाइम के जो हमें स्किल्स चाहिए, कॉम्पिटेंसीज चाहिए, वो शायद हमें स्कूल में कॉलेजेस में नहीं मिलती थी। जेंडर डिस्पैरिटीज वर देयर, women were not coming to the school, women were not giving a chance for the university, right? Like only like my father from a village background, उन्होंने कहीं से उन्होंने बीकॉम किया खुर्जा से, फिर वो नौकरी में आ गए, राइट? सो बट देन ही ensured me and my sister, we both studied, हम दोनों एक साथ पढ़े, एक ही क्लास में पढ़े। मैंने एमएससी फिजिक्स में की, उन्होंने मैथ्स में की। और लेकिन क्यों कर पाए? क्योंकि पिताजी ने पढ़ाई की थी, पिताजी गांव से निकल के बाहर आ गए। और लेकिन जो हमारे बाकी भाई बहन हैं गांव में, मेरे जो चाचा हैं, और जो उसमें से कोई बच्चा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हमारे चाचा ने खुद ने पढ़ाई नहीं की। थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, वो 10वीं पढ़ी, 12वीं पढ़ी, और लड़कियां तो बस 5वीं 6वीं हो गई, 7वीं हो गई, उसके बाद मतलब उनकी शादी कर दीजिए, बस बात खत्म। सो मेरा ये कहने का है कि जेंडर डिस्पैरिटी वो इसलिए हो पाया क्योंकि उस परिवार के एक सदस्य ने मेहनत की, पढ़ाई की, बाहर निकला, उसने जाना इस बात को कि बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन बच्चों के लिए। उनके जो बच्चे हैं, जैसे मैं हो गया, छोटा भाई है, एक सिस्टर है, इनको पूरी एजुकेशन दी। और फिर ऑब्वियसली मैं फौज में आ गया, सिस्टर भी बहुत पढ़ाती हैं, उनका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है मैथ्स का चंडीगढ़ में। सो ये क्यों हुआ? क्योंकि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आई एक इंसान को। 1960 में उसने समझा। My father was like, he was doing his BCom in 1960. So 1963 rather. So he realized that the education is very important. So if we don't realize this, then we'll be left behind. Digital divide. Because of the education policy today, we have a huge digital divide. Today, आजकल वो जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप कोर्सेरा एक बहुत अच्छा ऐप है, यूएस में चलता है, वो काफी बच्चे उसमें कोर्सेज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिजिटल नॉलेज नहीं होगी, आप उसमें अपने आप को एनरोल नहीं कर पाओगे, और आप शायद उसको कोर्स को भी नहीं कर पाओगे। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं एजुकेशन की जो आजकल आ रही हैं, वो अगर आपको, क्योंकि बहुत सारा एजुकेशन आफ्टर द कोविड ऑनलाइन हो गया है, अगर हमें उसका पूरा फायदा उठाना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू have the digital education with this. So therefore, the government of India decided that there has to be emphasis on the quality education. And इस emphasis के लिए, I think एक आपका lecture already cover हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसमें cover करता हूँ। इसमें emphasis दिया गया critical thinking के ऊपर, टीम वर्क के ऊपर, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग के ऊपर। मतलब आपके पास कोर्स सब्जेक्ट आपका साइंस हो सकता है, लेकिन इलेक्टिव आप साइकोलॉजी में भी ले सकते हैं। मैं फिजिक्स का छात्र हूँ, लेकिन अगर मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो मैं साइकोलॉजी भी पढ़ सकता हूँ। You get my point? So that is what the multidisciplinary learning is all about. Like today, I have written a few papers on leadership. Leadership is a psychological thing. Like while I'm a physics student, but since I have an interest in psychology, I could read about leadership. You get my point? So this is the flexibility which is required. Then हमने कुछ इनिशिएटिव्स डाले अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए। 15 साल का प्लान बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई 2019 में। उस कमेटी को काम दिया गया कि आप एजुकेशन पॉलिसी को ले डाउन करें, और इसका फोकस सिर्फ एक था, इस कमेटी का, एजुकेशन एनईपी का, एक्सेस सभी को मिले, सभी लोगों को एक मौका मिले पढ़ाई करने का, इक्विटी, बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले। अपॉर्चुनिटी बराबर की मिलनी चाहिए, उसके बाद अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से लोग बाग बेहतर या कम बेहतर कर सकते हैं। क्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन के अंदर, ऐसी एजुकेशन हो जिससे समाज का फायदा हो, इनोवेटिव होनी चाहिए, एंड एक्सीलेंस होना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल, मतलब द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, जिससे समाज को जैसा जरूरत है उस तरह की एजुकेशन, एंड डायनामिक। डायनामिक का मतलब यह है कि अगर कुछ बदलाव आ रहा है साइंस में, तो आपकी जो एजुकेशन है अकॉर्डिंगली इट इज चेंजिंग। जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन जिसकी हमने बात की है 2018 के अंदर, उन्होंने डिसाइड किया कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए। एक्सेस एंड इक्विटी, बेसिकली उन्होंने कहा कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है आज आई थिंक 26% है, वो बढ़ना चाहिए।
एलिजिबल एनरोलमेंट रेशियो है जो अराउंड 60% है, वो चाहते हैं कि 100% हो जाना चाहिए। रेलेवेंस, उसमें जो रेलेवेंस है वो 21वीं शताब्दी की जो स्किल्स हैं, आज की तारीख में हमें काम करने के लिए जो स्किल्स की जरूरत है उसको डालना चाहिए। और गवर्नेंस, जो हमारा यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, हायर इंस्टीट्यूट्स को जो गवर्न करती हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक होनी चाहिए। एंड फाइनेंसिंग, और एक और बात हुई कि क्वालिटी अगर हमको इम्प्रूव करनी है तो क्वालिटी कम्स एट ए कॉस्ट, राइट? सो देयर वाज अ प्रपोजल टू इंक्रीज द एजुकेशन में जो पैसा सरकार लगाती है, वो आई थिंक अभी 3-3.5% है, वो उसको बढ़ा के 6% करने की भी बात की है। सो ये एट्रीब्यूट 2018 में डिसाइड किए गए कि अगर क्वालिटी को इम्प्रूव, एजुकेशन में क्वालिटी, हायर इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो HEIs हैं उसमें अगर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स रहेंगे, इनके इर्द गिर्द हमारी पॉलिसी बनेगी। इस पॉलिसी के हिसाब से फिर हम करिकुलम बनाएंगे और उस करिकुलम के हिसाब से हम लोगों की क्षमताएं को बढ़ाएंगे, राइट? और जो ये क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो ड्राइवर्स थे, की ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो एक टेक्नोलॉजी थी। हमें ये इंश्योर करना है कि अगर क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो आज के टाइम की जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो रोबोटिक्स हो, वो ऐसी हो जैसे डिमांड जो है मार्केट के अंदर, उस डिमांड को हमें पूरा करना है। अभी इंजीनियर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो ऐसा नहीं कि हम इंजीनियर्स ही बना रहे हैं। अगर आज हमें एक डेटा मैनेजर चाहिए तो हमें डेटा साइंटिस्ट बनाना पड़ेगा। इस तरह की चीजें फ्लेक्सिबल हो, मॉड्यूलर मतलब जिस तरह की जरूरत है। अगर आपको एक बंदे को, फिजिक्स वाले बंदे को साइकोलॉजी भी पढ़ानी है तो आ सकते हैं कि आप अपना सब्जेक्ट इस तरह से बनाएं कि वो दोनों चीज पढ़ सके। इट इज मॉड्यूलर इन स्ट्रक्चर, लाइफ लॉन्ग। कोई चीज अगर वो सीख रहा है तो लाइफ लॉन्ग उसकी वो चीज है, राइट? फैकल्टी के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फैकल्टी की जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, गरिमा मैडम का इनिशिएटिव है, ये आपके कॉलेज का इनिशिएटिव है, आपकी यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव है कि जो फैकल्टी है दैट शुड अंडरगो द डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो एक्सपीरियंशियल रनिंग है, इंटरेक्शन विद लोकल कम्युनिटीज है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। टीचर्स जाएं आसपास के इलाके में, पता करें कि भाई क्या चीज है जिसको अगर वो स्कूल में पढ़ाएं तो वो इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर स्कूल में रहे, ताकि वो घर पे जाके बच्चा जो है कम्युनिटी का जो फायदा हो। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। वी हैव टू इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटी इन आवर स्कूल एंड कॉलेजेस करिकुलम टू डू द राइट काइंड ऑफ एन कम्युनिटी डेवलपमेंट। पेडागोजी की अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो पढ़ाने के जो तरीके हैं, नए नॉर्म्स को बनाना पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजीज हैं आज के टाइम पे, कोई नहीं, 4 उन बजे टेक्नोलॉजीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो ऑनलाइन कोचिंग है, ट्रेनिंग है, ओपन एंड डिस्टेंस मोड की जो कोचिंग है, उनको डालने की बात करनी पड़ेगी। और जो क्वालिटी एजुकेशन की इन्होंने बात की है, इन्होंने एक जो हमारा फ्यूचर है इंडिया का, उसको एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाने की बात की है। बहुत अच्छा पेपर है ये, काफी बड़ा पेपर था, तो इसको पूरा तो सारांश में नहीं कर पा रहा हूं मैं, लेकिन एक बहुत सुंदर सा एक सपना देखा है हमारे जो एक्सपर्ट्स उन्होंने बैठ के, कि जो 2030-2040 में जो हिंदुस्तान होगा, जो हमारा देश होगा, उस देश में एक नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी होगी। वो सोसाइटी जो नॉलेज से चलती हो। और उसमें ये भी कोशिश है कि जो स्कूल एजुकेशन है और जो हायर एजुकेशन है, स्कूल मतलब जो आपका 5+3+3+4 के बाद जो कॉलेज में जाते हैं, उसका जो सीमलेस इंटीग्रेशन होना चाहिए, उसके लिए काफी सारी स्कीम्स बनाई हैं। एक फोकस ये भी है क्वालिटी इंप्रूव करने में कि जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ाई जाए। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो कुछ लिमिटेड से प्रोफेशंस हैं, उनसे हट के इतने प्रोफेशन बनाए जाएं जैसे समाज के अंदर जरूरत भी है उन प्रोफेशंस की, और उनको सभी फील्ड्स के अंदर तैयार किया जाए, राइट? और बहुत जरूरी है कि इन डेप्थ रिफॉर्म्स, बहुत गहरे जो रिफॉर्म्स हैं वो बनाए जाएं, और जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं, गुड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को हम मीट कर सकें, राइट? जो ऑब्जेक्टिव्स रहे हमारे इसके क्वालिटी एजुकेशन इंप्रूव करने के, बेसिकली इंप्रूव ग्रेजुएट आउटकम्स। बेसिकली जो ग्रेजुएट्स हैं हमारे, जो ग्रेजुएट करके निकलते हैं कॉलेज से, उनका जो आउटकम है, उनकी जो काबिलियत है, वो बहुत अच्छी हो। दूसरा जो उनका ऑब्जेक्टिव था क्वालिटी इंप्रूव करने का, वो ये था कि जो स्टूडेंट की जो सोसाइटी के साथ एंगेजमेंट है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव हो। इंडस्ट्री के साथ जो एंगेजमेंट है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव हो। एक क्रूशियल प्रोफेशनल एंड लाइफ स्किल, क्वालिटी एजुकेशन में ये एम्फेसिस किया गया कि जो लाइफ की जो और प्रोफेशन की जो इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाए। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो फैकल्टी है, ऑब्वियसली आप अच्छा तब पढ़ा पाएंगे जब आप खुद को तैयार कर पाएंगे। अगर आज की साइंस में कुछ और नई तरक्की है और फैकल्टी उससे
अपने आप को अज्ञान रखती है, अननोन रखती है, then it is very difficult for the faculty to teach the students, because students will know it from through the WhatsApp or through the Google. And if the faculty is not doing it, then there is a very important need to have the faculty development program, right? Then there are certain initiatives have been taken to improve the quality. To improve the quality, this paper gives out 10 different initiatives, right? मतलब 10 different verticals decide किए गए, और ये decide किया गया कि इन verticals के ऊपर काम किया जाएगा। जो एजुकेशन पॉलिसी है इन वर्टिकल्स के आसपास बनेगी, और एक हम ऐसा उस थ्रू दैट एजुकेशन पॉलिसी हम एक ऐसा समाज निर्माण करेंगे जो बेहतर हो, जिसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़िया हो, और जो हमारा देश है वो उन्नति तरक्की बिल्कुल सही दिशा में करे, राइट? ये जो 10 वर्टिकल्स हैं, जो 10 इनिशिएटिव्स हैं, मैं इनके बारे में सबके बारे में तो बात नहीं करूंगा क्योंकि समय इतना नहीं है। मैं इनमें से जो कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है उन 3 या 4 के बारे में बात करते हैं, ताकि वी विल कम टू नो कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, द एक्सपर्ट्स हैव डिसाइडेड that the community development will become an important part of the curriculum so that the community get benefited of this, right? जैसे for example, imparting life skills to students, जीवन कौशल। ये जो क्वालिटी है जीवन कौशल की बात करता है, इसमें कहते हैं कि हमें लोगों को ऐसी स्किल्स सिखानी है ताकि उनको जो जीवन कौशल है उसमें इंप्रूवमेंट हो, प्रोफेशनल और पर्सनल उनको कामयाबी मिले। इसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, समाज में रहने के लिए स्किल्स की बहुत जरूरत होती है। हम शायद उस बात का ज्ञान हम जब स्कूल में पढ़ते हैं हम नहीं देख पाते हैं, बट एज वी इंटरेक्ट आउटसाइड, हम अपने प्रोफेशन में आते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि सोशल स्किल्स तो एक बहुत बड़ा डोमेन है पढ़ाई का, और वो शायद हम लोग मिस कर जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, इंटीग्रिटी, इस तरह की जो लाइफ स्किल्स हैं इनको बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है स्कूल कॉलेजेस में। जरूरी है कि क्वालिटी अगर इंप्रूव करनी है तो इन पर भी फोकस किया जाए। क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए एक यूनिवर्सिटी एंड सोशल कनेक्ट, जो यूनिवर्सिटी है और जो सोसाइटी है इनके बीच का जो कनेक्ट है, इसको एस्टैब्लिश करने का जिम्मेदारी दी गई है एजुकेशन सोसाइटी को। एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है उसको, उसमें ये बोला गया है कि जो यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री है उसके कोलैबोरेशन से जो बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिले। अब जैसे हम बात करते हैं, हमारी शुगर मिल कितनी सारी हैं, दौराला शुगर मिल है हमारे पास, सकौती में भी शुगर मिल है, मेरठ के अंदर भी शुगर मिल, लेकिन हम जो स्टूडेंट्स होते हैं हमें शायद इतना मौका नहीं मिलता है वहां जाने का, वहां चाहे हम साइंस के स्टूडेंट हो, बट वी डोंट गेट ए चांस टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देयर। सो द यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री कनेक्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। लाइक वी हैव सो मेनी यूनिवर्सिटीज इन द वेस्टर्न यूपी, बट हाउ फार दे आर कनेक्टेड विद द लोकल इंडस्ट्री, that for me, if it is happening these days is fine, but हमारे टाइम पे शायद ऐसी चीज नहीं थी। Then there is a very important need for do the quality research। हमारे यहाँ रिसर्च को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। PhD fine, it's just considered as one of the profession or one of the like another one more degree added to your career, but it is very important that to find out questions for very important प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द कम्युनिटीज। अगर वेस्टर्न यूपी के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे वो जेंडर डिस्पैरिटी को लेके हो, चाहे वो फीमेल एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, व्हाई इट इज हैपनिंग, ए गुड रिसर्च इन द सोशियोलॉजी और इन एनी डोमेन ऑफ द ह्यूमैनिटीज कैन डू इट एंड फाइंड आउट एंड कैन गिव ए recommendation to the government of UP that if you do this, the life in the Western UP will improve. And who best can do this? A student from the CCSU or from your college, right? So point is कि basically capacity building, social innovation और high impact research के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हम जब बात करते हैं क्वालिटी की, हम बात करते हैं तो क्वालिटी के अंदर हमने एक चीज को हम बहुत मिस कर जाते हैं, हम एथिक्स को बहुत ज्यादा मिस कर जाते हैं। वैल्यूज एंड एथिक्स, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में नहीं दी जाती है। इट इज लेफ्ट टू द फैमिली or to the community or to the parivar to teach their respective students about these values and ethics. We do not cover these important subjects, but अगर एक समाज को आगे लेके जाना है तो उसके मूल्यों को स्कूल में पढ़ाना बहुत जरूरी है। पढ़ाए अगर वो जाते हैं तो उनका जो प्रैक्टिकल डिस्पोजिशन है वो बहुत जरूरी है।
राइट, एज आई सेड कि ये जो वैल्यूज हैं ये बहुत क्रूशियल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, एंड दे मस्ट बी पार्ट ऑफ द एजुकेशन। जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज हैं और जो हमारे संविधान की जो वैल्यूज हैं, बहुत प्यारा सा संविधान लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों को कितना पढ़ाया जाता है उसके बारे में? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ाया जाता है, राइट। सो एक वैल्यू बेस्ड होलिस्टिक एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड वो मूल्य जो समाज को आगे लेके जाने में बहुत ज्यादा रोल करेंगे, चाहे वो सोशल जस्टिस की बात हो या ह्यूमन राइट्स की बात हो या कैरेक्टर फॉर्मेशन की बात हो। आपका अपना एक चरित्र का जो निर्माण है वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। उस चरित्र निर्माण में वैल्यूज की बहुत जरूरत है, और उन वैल्यूज को पढ़ाने के लिए शिक्षक से बड़ा कौन हो सकता है? बिकॉज बच्चे जो है पेरेंट्स से ज्यादा शिक्षक ही सुनते हैं। अगर वो चीजें किसी न किसी रूप से आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अगर इंटीग्रेट कर दी जाएं तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा काम आएगा। यू गेट माय पॉइंट? देन अगर हम बात करें सोसाइटी और यूनिवर्सिटी कनेक्ट की बात कर रही है, हमारे चौधरी चरण सिंह विद्यालय का फोटोग्राफ है, एंड ऑन दी राइट साइड इज दी कम्युनिटी और द सोसाइटी ऑफ यूपी। हर डाइवर्स हैं हम लोग, बहुत हर तरह के हम लोग वहाँ हैं। अगर इन दोनों के बीच में कनेक्ट अगर हो जाए, जो इनकी परेशानियां हैं सोसाइटीज की, कम्युनिटीज की, वो अगर हमारे महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, करिकुलम में आ जाएं, तो हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। सॉल्व नहीं भी हो तो हमारे पास उनके सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर वो सॉल्यूशंस को, अगर हमें उसमें सरकार की जरूरत है, स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत है, तो हम फोर्स कर सकते हैं, हम किसी तरह की बात करके उसको हम आगे लेके जा सकते हैं। पॉइंट कहते हैं ना कि हमारा जो वेस्टर्न वे ऑफ एजुकेशन था, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, हम ट्रेडिशन हमारे थे, एजुकेशन हमने वेस्टर्न की फॉलो की, तो वो जो मिसमैच हुआ उसकी वजह से काफी चीजें हमारी गोलमोल हो गई, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेस्टर्न ट्रेडिशन गलत है, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन वेस्टर्न ट्रेडिशन के साथ फिट इन होती है। हमारे ट्रेडिशन के साथ हमारी अपनी एक एजुकेशन पॉलिसी फिट इन हो सकती है। सो ये जो मिसमैच था ये बहुत जरूरी था, और हमारी एजुकेशन के अंदर रिसर्च और आउटरीच, ये दो चीजें बहुत कम थी। रिसर्च हम करते थे, लेकिन रिसर्च उन मुद्दों पे नहीं होती थी जो लोकल कम्युनिटीज की जरूरत है। आउटरीच भी बहुत कम था। आउटरीच मतलब हम कितना जाते थे लोकल फील्ड्स में, कम्युनिटीज के अंदर प्रैक्टिकल लोगों के से बातचीत करने के लिए, टू नो देयर प्रॉब्लम। So our own traditions mixed with our own education policy, and to involve research and outreach in our education will definitely go in a long way to carry out the community development. कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने ये काम भी किया है, और ये बहुत जरूरी है कि जो हमारी कल्चर है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी अपनी जो डाइवर्सिटी है, उन चीजों के बारे में अपने करिकुलम में डालना, उनकी समस्याओं के ऊपर रिसर्च करना, आउटरीच को फॉलो करके उनसे मिलना, लोगों से जाके उस समस्या को जानना और उसके बहुत ज्यादा वर्केबल सॉल्यूशन को देना, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस टू improve the quality of education, so that the education does its role of community development, right? हम लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, जिससे 21st सेंचुरी की स्किल्स की अगर हम बात करें, तो 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं जो स्कूल कॉलेजेस में थोड़ी कम कवर होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कहाँ पढ़ाया जाता है? प्रोफेशनल स्किल्स की बात करें, लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल्स की बात करें, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू स्किल्स की बात करें, ये आज के टाइम की जरूरत है। आप स्कूल कॉलेजेस में इनको अगर नहीं पढ़ेंगे तो जैसे ही आप जॉब में जाएंगे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट वेल, यू विल नॉट बी एबल टू डू वेल इन लाइफ। If you do not have leadership management skills, then you will never become a good leader. And obviously, if you do not have the human values, if you do not know the universal human values and how important they are in your professional life, again, you will not do very well. So therefore, it is very important. मैंने कुछ लिस्ट आउट की हैं, थोड़ा सा मैं समय से पीछे चल रहा हूँ, थोड़ा सा तेजी से करेंगे। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो इस शताब्दी की जो 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं, इन स्किल्स को जानना, पहचानना, उनको अपने करिकुलम में डालना, ये बहुत जरूरी है। वोकेशनल एजुकेशन, ये इसके ऊपर आपका एक पूरा लेक्चर होने वाला है या शायद हो गया है, तो आई विल नॉट कवर दिस पार्ट। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, द वोकेशनल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। जैसे जितनी जरूरी लाइफ स्किल्स हैं, उतना ही जरूरी वोकेशनल ट्रेनिंग को भी है।
और ये आपका क्वालिटी एजुकेशन का जो मैंडेट है उसके अंदर इसको हमने इंक्लूड किया गया है। सो देयरफॉर जब हमने 2018 में क्वालिटी की बात की, हमने कुछ डोमेन्स को आइडेंटिफाई किया, जो मैंने 3-4 डोमेन आपके साथ कवर किए, लाइफ स्किल का, वोकेशनल ट्रेनिंग का, वैल्यूज का, और किस तरह से क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है सो दैट एजुकेशन जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है वो एडजस्ट की जा सके। So then we came on to the national education policy. We can say the national education policy is crucial for effective community development. वो हमारी hypothesis जो थी वो प्रूव हो गई कि जो एजुकेशन पॉलिसी है एक बहुत जरूरी है फॉर इफेक्टिव कम्युनिटी डेवलपमेंट, एज इट आउटलाइंस एजुकेशनल स्ट्रेटेजीज अलाइनिंग विद द कम्युनिटी नीड्स। जो आपके समाज की जरूरत है उस जरूरत को कम्युनिटी एजुकेशन की जो स्ट्रेटेजी है उनके साथ जो मिलाप है वो थ्रू पॉलिसी होता है, राइट। पॉलिसी एक पेपर है, उस पेपर ने क्या किया, आपकी एजुकेशनल स्ट्रेटेजी को कम्युनिटी की नीड्स के साथ अलाइन कर दिया, राइट। एंड देयरफॉर द एजुकेशन पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड विद अ विजन, एज आई सेड। उसका विजन था कि हमारे अपने नेशन को एक नॉलेज सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, और उसके अंदर जो हमारे अपने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आपकी और मेरी जो हमारी ड्यूटीज हैं, उनको इंक्लूड किया जाए। एक ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करें, और हमारा जो हिंदुस्तान की जो हेरिटेज है, जो हमारे भारत की, इंडिया की जो बहुत स्ट्रॉन्ग सी हेरिटेज है, उसके बारे में हमें एक प्राइड हो, गौरव हो। हमारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे इस एनईपी के, यूनिक कैपेबिलिटीज, हर स्टूडेंट की एक यूनिक कैपेबिलिटी होती है। आई मीन गरिमा मैडम में बी वेरी गुड इन फिजिक्स, देन देयर मस्ट बी समबडी एल्स हु इज गुड इन अदर सब्जेक्ट। सचिन तेंदुलकर अगर आज सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहा होता तो आई डोंट थिंक सो वी हैव लॉस्ट ए वंडरफुल क्रिकेटर, राइट। So the point, Amitabh Bachchan saab missed to join Fauj. He appeared in CDS. I believe he was not selected. But then we got a great person in the art. So the unique capabilities of every individual is required to be arrested in the school and accordingly dovetailed in the curriculum. Conceptual understanding of over rote learning, वो जो रट्टा मारने की जो प्रवृत्ति थी उससे बाहर निकलना पड़ेगा, नॉलेज को विजडम बनाना पड़ेगा, राइट। एथिक्स एंड वैल्यूज को, हमारी जो ये एनईपी के अंदर सारी बातें आई हैं, एथिक्स एंड वैल्यूज, मैं उनको कवर कर रहा हूं जो कम्युनिटी डेवलपमेंट में एथिक्स एंड वैल्यूज, जो मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य और पर्सनल जो वैल्यूज हैं, उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया गया एनईपी के अंदर। पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जो समाज की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को भी करिकुलम में डालने की कोशिश की गई है। जो हमारे की फीचर्स हैं इसके, असेसमेंट रिफॉर्म को किया गया है। पहले असेसमेंट रिफॉर्म मैंने कहा ना, आपको 10वीं में या 9th में आपको 2 पेज का एक वो मिल जाता था असेसमेंट की, आपके इतने इतने नंबर आए हैं, और आपका ख्याल, जो आपका जो फोकस है वो स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा है, फुटबॉल ज्यादा खेलते हैं आप। लेकिन अभी जो रिफॉर्म आएगा उस रिफॉर्म में असेसमेंट अगर आप करेंगे तो एक जितनी काबिलियत है, वेदर कम्युनिकेशन स्किल कितनी है, इसको सोशल अवेयरनेस कितनी है, इसकी सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, इसमें एम्पैथी कितनी है, वो जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो सारी कॉम्पिटेंसीज लिखी जाएंगी, उसमें असेस करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी सी बात हुई है। इक्विटी एंड इंक्लूजन, बेसिकली सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और समाज के हर पहलू को इंक्लूड किया जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी, बेसिकली इलेक्टिव कोर्स सब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है, जिसके अंदर जो बच्चा जो पढ़ना चाहे उसको पढ़ सकता है। फ्लेक्सिबल करिकुलम, and there has been emphasis on the life skills and vocational education. And इसका community development में क्या फर्क पड़ेगा? Because of this NEP, access सभी के पास होगा। जो skill development है वो बहुत holistic होगा। Research and innovation के ऊपर बहुत जोर है। जो community की research है, that will be there. Curriculum बड़ी flexible हो गया, multilingualism। संस्कृत को कहते हैं ना, धीरे धीरे लोग भूलने लगे थे, जो लोकल लैंग्वेजेस है भूलने लगे थे। एक टाइम था जब मैं एसएसबी के जाने वाला था, तब मुझे लगता था कि मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो हो सकता है मैं आई विल नॉट बी एबल टू बी देयर। बट द पॉइंट इज, अभी जो एनईपी बनी है उसमें अगर आपको लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर, जो आपकी लोकल लैंग्वेज को आप जानते हैं, जिस लैंग्वेज में आप मजबूत हैं, उस लैंग्वेज में भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सो इन्होंने एनईपी के अंदर काफी सारे चीजें डाली हैं। यूजीसी ने कमिटमेंट लिया है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है उसको अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डालेंगे। एक उन्नत भारत अभियान लॉन्च हुआ है, एंड जो कम्युनिटी एंगेजमेंट, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाते हैं गवर्नमेंट, उन तक लोगों तक पहुंचाना, ये थ्रू एजुकेशन, थ्रू स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ये किया जाएगा।
जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको इन्वॉल्व किया गया, पूरी हमने स्टडी की और हमें ये मिला कि जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हमने डाला है। और इसके अंदर पंचायत, अर्बन लोग, जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनको भी बिल्कुल इन्वॉल्व किया गया कि उनके क्या रोल होंगे अंदर। जो इंटर्नशिप होगी, हो सकता है कि आपकी इंटर्नशिप पंचायत के साथ हो, आपकी इंटर्नशिप म्यूनिसिपैलिटी के साथ हो, राइट। सो एक आपका जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर एक कंपलसरी कोर्स कर दिया गया है कम्युनिटी एंगेजमेंट का। उसको क्रेडिट दिया है, 2 क्रेडिट दिए गए हैं और उसमें बताया गया कि आपको 30 घंटे पढ़ा, 30 घंटे का 100% आपको क्लास करनी पड़ेगी। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको 2 क्रेडिट मिलेंगे। एंड ऑल्सो उसमें प्रैक्टिकल क्लासेस के ऊपर काफी फोकस किया गया है, राइट। सो बेसिकली क्वालिटी के बाद एनईपी जो बना, तो एनईपी के अंदर क्वालिटी डेवलपमेंट की, इसको इंप्रूव करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए काफी चीजें इस पॉलिसी में डाली गई हैं। पॉलिसी के बेस के ऊपर करिकुलम बनेगा, करिकुलम जो आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और उस पढ़ाने के बाद, उस नॉलेज के बाद उसमें क्षमताएं आएंगी और वो क्षमता जब वो बच्चा बाहर निकलेगा, उनको यूज करेगा तो कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा। सो फर्स्ट इज क्वालिटी, देन इज योर एनईपी, and based on the NEP you guys will make the curriculum, and based on the curriculum you will impart the knowledge and the practical wisdom, and with this knowledge and the practical wisdom he will attain competencies, and with these competencies he will handle the community problem, the national problem, the global problem, the problem of his profession, his personal problem. That is what the sequence is all about. So जैसे water harvesting, logistics, business planning, बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इस कम्युनिटी की नॉलेज को, ये जो एनईपी है उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंट कर दिया गया है, ताकि जो बच्चा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद निकलता है उसके पास हर तरह की क्षमता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, एंड ही कैन हैंडल, ही इज लाइक अ सुपरमैन हु कैन हैंडल एवरीथिंग अराउंड हिम, एंड ही इज गॉट द कॉम्पिटेंसीज। उसके बाद काफी सारी क्षमताएं ऐसी हैं, योग्यताएं ऐसी ऐसी हैं, योग्यताओं के थ्रू वो he can achieve good in life. मैं आपको आखिर की कुछ स्लाइड्स हैं मेरी बची हुई हैं, मैं आपको एक आर्मी के अंदर हमने इस तरह का काम हम कैसे करते हैं उसका एग्जांपल देना चाहता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि पूरा का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, आर्मी के अंदर ऑफिसर्स हैं तो एक लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ऑब्वियसली ये ऑफिसर्स और लीडर्स। तो जो लीडर्स होते हैं वो एक छोटे लेवल पे होते हैं, तो वो डायरेक्ट लीडर, छोटे लेवल मतलब कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, ये जो साहब होते हैं ये डायरेक्ट लीडर होते हैं। फिर थोड़े से ऊपर जाओ तो इनडायरेक्ट लीडर हो जाते हैं, जैसे कर्नल साहब हो गए, ब्रिगेडियर साहब हो गए। तो ये लोग थोड़ा सा डायरेक्ट, इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है ब्रिगेडियर साहब की, तो वो थ्रू लोअर ऑफिसर्स इंटरेक्ट करते हैं। और उसके ऊपर अगर जाएंगे, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, तो वो विजनरी या स्ट्रेटेजिक लीडरशिप होती है, राइट। लेकिन लीडर चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा लेट डाउन है। जैसे आप लोग का जो स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट बनकर निकलेगा या पोस्ट ग्रेजुएट करके निकलेगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वैसे ही हमारे यहाँ भी लीडरशिप की रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम उसको डिफाइन करते हैं बी मतलब बी ए लीडर ऑफ कैरेक्टर एंड बी ए लीडर ऑफ प्रेजेंस। मतलब वो जो लीडर है उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट, वैल्यू, स्टैंडर्ड, एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंशियल, रिस्पॉन्सिबल। उसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत अमेजिंग होनी चाहिए। प्रेजेंस का मतलब ये नहीं कि उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, प्रेजेंस का मतलब ये है उसके पास कम्युनिकेशन की एबिलिटीज है। अगर वो बातचीत करता है तो उसकी बात समझ में आती है, इफ स्पीकिंग पीपल आर लिसनिंग टू हिम, राइट। द सेकंड इज नो मतलब इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। बेसिकली उसको अपनी प्रोफेशनल नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। ही शुड हैव एन आर्ट ऑफ टीचिंग, he should also have an art of communication. And third is do. Basically he has to perform as a leader. Basically उसके पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके और अपनी जो टीम है उनको डेवलप कर सके, and through this he is able to achieve. तो बेसिकली एक लीडर की जो रिक्वायरमेंट है वो बी ए लीडर ऑफ कैरेक्टर, बी ए लीडर ऑफ प्रेजेंस, नो योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी एंड डू। बेसिकली डू मतलब आप वो ऐसा परफॉर्म करें जिसके लिए आपका रोल है, चाहे वो डायरेक्ट लीडरशिप का है। जब ये लीडरशिप की रिक्वायरमेंट हमारी बन गई, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये निकालते हैं कि उसको लीडरशिप की कॉम्पिटेंसीज कौन कौन सी आनी चाहिए।
मतलब उसके पास योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। पहले तो हमने रिक्वायरमेंट निकाली कि कैसा होना चाहिए लीडर, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी क्षमताएं होनी चाहिए। उसके पास लीडरशिप होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, मॉरल एथिक्स वैल्यूज होने चाहिए, उसको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में मालूम होना चाहिए, ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में मालूम होना चाहिए, टीम बिल्डिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे। सो बेसिकली हमने पहले दिखाया कि लीडर, एक्सक्यूज मी, हमने पहले ये डिसाइड किया कि लीडर होता कैसा है, और लीडर होने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि उसमें योग्यताएं कैसी कैसी होनी चाहिए, राइट। एंड एक लीडर के अंदर मैनेजमेंट की भी चीजें आनी चाहिए, चेंज मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट। बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले हमने डिसाइड किया, आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन अगर सोशियोलॉजी से निकला है तो उसके पास रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, क्षमताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। तो पहले हमने देखा लीडर कैसा होना चाहिए, और लीडर के बाद हमने ये डिसाइड किया कि लीडर के अंदर लीडरशिप के क्षमताएं होनी चाहिए, उसके अंदर मैनेजमेंट की भी क्षमताएं होनी चाहिए। तो उनको हमने एक जगह लिस्ट कर लिया। उसको लिस्ट करने के बाद हमने उन क्षमताओं को अंदर लाने के लिए उसके अंदर हमने सब्जेक्ट्स डिसाइड किए, राइट। वो हमने कैसे किए, जैसे आप अगर व्यू साइड पे देखें तो अभी सपोज करो अगर आप एक कलर जो है ऊपर हमने लिखा हुआ है 0 to 6 years, 7 to 14 years, 15 to 18 years, मतलब बेसिकली शुरू के जो 6 साल की सर्विस है उसको क्या क्या पढ़ना चाहिए, 7 से 14 में क्या क्या पढ़ना चाहिए, 15 से 18 में क्या क्या पढ़ना चाहिए, 19 से 24 में क्या क्या पढ़ना चाहिए, एंड 25 से 32 साल की उम्र में क्या क्या पढ़ना चाहिए। उम्र मतलब स्पैन ऑफ सर्विस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और एक पर्टिकुलर जो कलर है, अगर येलो कलर है तो वो चीज 0 से शुरू हुई है 32 तक जा रही है, लेकिन उसका कंटेक्स्ट बदल गया है, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से लियो इज कि पहले हमने डिसाइड किया कि लीडरशिप के अंदर हम देखते क्या क्या है, फिर हमने एक लीडरशिप की हमने वो कॉम्पिटेंसीज, क्षमताओं को आइडेंटिफाई किया, क्या क्या उसको होना चाहिए, एंड फिर उसको लाने के लिए किस तरह की सब्जेक्ट्स हैं, किस तरह की टीचिंग है, वो हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें तो लीडरशिप अगर पढ़ानी है तो हमने शुरू में उसको इंट्रोडक्शन टू लीडरशिप पढ़ाया, फिर हमने उसको लीडरशिप ट्रेट्स बताए, फिर अलग अलग मॉडल्स बताए, फिर हमने उसको ट्रांजैक्शनल ट्रांसफॉर्मल लीडरशिप की बात करी, फिर हमने स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बात करी, फिर हमने स्ट्रेटेजिक एंड विजनरी लीडरशिप की बात करी। बेसिकली जब नीचे से डायरेक्ट लीडरशिप से लेकर विजनरी लीडरशिप तक हमने उसको थ्रू अवर कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज के थ्रू, अलग अलग टीचिंग के थ्रू हमने उसको ये लीडरशिप स्किल डालने की कोशिश की। सिमिलरली हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए सब्जेक्ट्स डिसाइड किए हुए हैं कि शुरू में वो क्या पढ़ेगा और आखिर में जब वो सीनियर ऑफिसर हो जाएगा तो उसको क्या पढ़ना चाहिए। इसी तरह से हमने टीम बिल्डिंग, सो बेसिकली पहले हमने क्षमताएं डिसाइड की, जैसे लीडरशिप क्षमता है, कम्युनिकेशन क्षमता है, टीम बिल्डिंग एक क्षमता है। इन क्षमताओं को डेवलप करने के लिए, टू डेवलप दिस कॉम्पिटेंसीज इन आवर लीडर्स, वी हैव डिसाइडेड एट व्हाट स्टेज ऑफ द लाइफ इन द सर्विस ही शुड डू व्हाट ऑल, he should read what all, he should, and then we also decided the modes of teaching through lectures, through personal reading, through conduct of examinations, etc, etc. Similarly for the management we have decided creative thinking के लिए उसको क्या क्या पढ़ना चाहिए, stress management के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए। So with this, what I'm trying to tell you is you can decide in your colleges, in your universities, once the student pass out from your university, उसमें काबिलियत क्या होनी चाहिए, उस काबिलियत को लाने के लिए उसको क्या क्या पढ़ना चाहिए, और उसको क्या क्या पढ़ना चाहिए के लिए उसका करिकुलम कैसा होना चाहिए। एंड करिकुलम डिसाइड करने के बाद यू कैन ऑलवेज डिसाइड कि उसको पढ़ाने के मोड्स कैसे हैं, ऑनलाइन पढ़ाना है, लेक्चर्स देने हैं, या फिर उसको क्लासरूम टीचिंग में पढ़ाना है। इस तरह की चीजें करके एक सिलेबस, करिकुलम और इस तरह से पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। और ये काम मैंने खुद इन्वॉल्व था इस काम के अंदर, जब ये 2018 में हमने लीडरशिप का कोर्स डिसाइड किया था, काफी मेहनत लगी थी। आई एम श्योर आप लोग भी इस टाइम पे उसी चीज में लगे हुए हैं। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। At the end of my talk, I just want to tell you one thing: the teachers are responsible for framing the society, and if you are doing your job well,
and this paper is phenomenal. NEP, I'm a big fan of this NEP 2020. इसका implementation जो है वो थोड़ा complex जरूर है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा rigid हो चुके हैं और एक सिस्टम कई सालों से चल रहा है, उस सिस्टम को बदलना है. उस बदलने के लिए ऑब्वियसली हमें बहुत ग्रेट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, एंड परहैप्स ये जो हमने वेबिनार किया है ये भी एक स्टेप है उसी की तरफ, उसी दिशा में. ज्वाइन करते हो किस समय? थैंक यू वेरी मच गरिमा मैडम. आई हैव फिनिश्ड. That is my end of my talk. थैंक यू. आपने तो इतना अच्छा ऐसे एलोबोरेट फॉर्म में हमें दे दिया है, रोड मैप हमें दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ एक स्लाइड थी आपकी, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी. स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडक्शन, कीपिंग द प्रोग्रेशन ऑफ योर स्टूडेंट्स. बहुत अच्छी. यदि आपकी स्लाइड्स में मैं करूँ, कौन सी स्लाइड थी वो, इसको ऊपर लेते हैं. यदि बहुत अच्छी स्लाइड थी, मुझे लगा सारा रोड मैप फॉर द फैकल्टी आपने प्रोवाइड कर दिया है. उसमें से हो सकता है कुछ स्टेप्स हम मतलब मिस कर दिए जाते हो, लेकिन आपने, मैं सोच रही हूँ आर्मी में यार गलत चले गए आप. तो यही होते, टीचिंग में होते तो ज्यादा अच्छा था. बुला लीजिए अपने कॉलेज में, आ जाऊंगा, क्लासेस ले लिया करूंगा सैटरडे संडे. आप दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभा रहे हैं. और यहाँ पर जो लोग प्रेजेंट हैं, फैकल्टी मेंबर्स, जो मुझे डायरेक्ट दे सकते हैं फीडबैक, वो कह रहे हैं कि मैम इज ही रियली इन आर्मी. तो मैंने उनको आपके बारे में कुछ और भी चीजें बताई. मैंने ही हैज ए वेरी गुड नेक फॉर राइटिंग आल्सो. राइटिंग स्किल्स उनके बहुत अच्छे हैं, और जो है कीन स्पोर्ट्समैन तो वो है ही. और जो भी काम दे दिया जाता है वो बड़े परफेक्शन से करते हैं, परफेक्शनिस्ट है. ये उनके बारे में इम्पोर्टेंट बात है. तो आप, मैं ज्यादा समय, एक मैडम ने पूछा था, संध्या मैडम ने कुछ पूछ रखा है. संध्या मैडम आप हैं? हाँ मैडम हूँ मैं. आप अपनी बात खुद कह सकती हैं, प्लीज कहिए. गुड इवनिंग सर. सर पहले तो आपको बधाई, आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेक्टिव था. और Thank you. आपको कभी देखा नहीं था सर, देखने का मौका मिला. आपके बारे में सुना ही था चारू मैडम से मैंने, तो बहुत अच्छा लगा सर आपका बता दीजिए लेक्चर. क्या से. हमारी लीडर है चारू मैडम. हाँ जी, चारू मैडम से सुना था आपके बारे में. सर मेरा तो क्वेश्चन थोड़ा सा बस ये था कि सारा जो मतलब एक तरह से प्रेशर है सब टीचर्स पे ही है, तो जो कम्युनिटी जो है वो क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती है फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर वार्ड्स, क्योंकि बच्चे उन्हीं के पढ़ने हैं, कम्युनिटी के ही. और कम्युनिटी डेवलपमेंट पे जो है टीचर्स का, ये जो कहना चाहिए सरकार का सारा जो है मतलब प्रेशर है, तो कम्युनिटी को भी तो मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन दिखाना चाहिए. और आज के जमाने में सर ये हो रहा है कि टीचर्स को जो है अगर मैं लिटरली कहूँ तो गालियां ही मिलती हैं कि जाते हैं कॉलेज में, आ जाते हैं, कुछ करते नहीं है. तो कम्युनिटी को भी तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए ना. इट शुड टू वे ट्रैफिक, वन वे नहीं होना चाहिए. I completely agree with you. तभी मैंने कहा कि this is a very good concept paper, but how we will implement this on ground will be a task. And yes, the teachers have a very important and very significant role. और कहते हैं ना कि ये जो भारी काम होता है वो टीचर्स के कंधों पे ही आता है. But I can understand कि yes, the community has a role to play, and the education plays a very important role. Like I am a reasonably educated guy, तो मुझे ये समझ में आ रहा है ये बहुत जरूरी है. And tomorrow, if the teaching fraternity, and that's why I agreed to Garima Madam's request for this call, because everybody has to pitch in. But yes, अगर मैं अपने गांव की बात करूं, उसमें अगर मैं ये लेक्चर दूं और उनको बोलूं कि भाई आपको कॉलेज में जाके बातचीत करनी, तो भाई मुश्किल है. तो ये एक पहाड़ चढ़ने वाली बात तो है, मतलब इट इज एक्चुअली हरकुलियन टास्क. बट ये शायद संध्या मैडम, गरिमा मैडम, आप लोग, हम लोग मिलके ही शायद कर सकते हैं. जिसके पास इतना ज्ञान नहीं है, who cannot understand this, कि इस NEP की वजह से हमारे देश को, हमारे समाज को कितना बड़ा एक फायदा होगा, एक रेवोल्यूशन की तरह से एक चीज है, वो शायद इतना ज्यादा इंक्लाइंड नहीं होगा. टाइम आएगा. जैसे मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि माय फादर केम आउट टू डू BCom in 1963 from a very small village in Bulandshahr, and today I am sitting here giving a talk to you. And my brothers are not able to. So somebody has to take the lead. Now, he took the lead in 1960s. Let's take the lead today. मेहनत तो है, and that's why you and me are here.
यस, द अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे स्वच्छता अभियान चला, उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज्यादा आई। मैं एनईपी में शायद देखता हूँ कि इतना ज्यादा नहीं है। वो शायद कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा। एंड आई थिंक थ्रू दिस वेबिनार्स and through the recommendations from the school fraternity, from the school management, if it reaches the right people, these kind of things also be undertaken. Digital India, प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है, इनका बहुत ज्यादा जिक्र होता है, बट एनईपी का जिक्र इतना ज्यादा शायद नहीं होता है। दिस माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सो अगर ये रिकमेंडेशन जाए तो आई एम श्योर दिस विल आल्सो बी टेकन केयर ऑफ। स्टूडेंट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस चेन, टीचर, स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी। तो जी। एक तरह से नेक्सस समझिए सर, मेरे ख्याल से तो मुझे तो यही समझ में आता है। जी, मुझे लगता है संध्या मैम कि शायद जैसे एनईपी अभी आई है टीचर्स के थ्रू, कॉलेज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आई है, तो जिस प्रकार से अभी हम लोग टीचिंग फ्रेटर्निटी को ही उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं, चाहे वेबिनार्स के थ्रू, चाहे आर्टिकल्स के थ्रू, चाहे उसके बारे में सेमिनार्स करने के थ्रू, लेकिन इसी प्रकार से कम्युनिटी को भी जोड़ने की भूमिका हमें ही निभानी होगी। लेकिन इसके लिए कड़ी बनेगी हमारे स्टूडेंट्स की, को हमें जोड़ना होगा, उनको उसके बारे में समझाया जाएगा, वो जाके कम्युनिटी से इंटरेक्ट करेंगे, तब ये चीजें वन बाय वन दूसरे स्टेप्स तक जाती हैं चीजें इस तरह से। तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए वी हैव टू ट्रेन द स्टूडेंट्स। हाँ जी मैडम, यही मैं कहना चाह रही थी। मैम एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ जी, गुड इवनिंग मंजूषा। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बोलिए। सर जैसे आपने कहा कि एनईपी के थ्रू जो चिल्ड्रंस आर बिकम सुपरमैन, तो we want them to become Superman. We want them to become, we want them to handle Superman not in the physical terms. My point of Superman is he is able to handle the critical conditions of his life. जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, अभी मतलब होता है कि काफी डिसीजंस होते हैं जो हम पेरेंट्स के ऊपर छोड़ देते हैं। इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है, शादियां करनी है, बड़े बड़े डिसीजंस हैं, we leave it to the system to decide for themselves. So my point is he is able to decide for himself. मतलब that is what the decision making ability is putting Superman in that context. हाँ बताइए सर। Sorry. मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे रूरल एरियाज के बच्चे हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरी, तो मतलब उनके लिए ना सारा मैशअप हो गया है। जो एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट के बाद आप नेक्स्ट ईयर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, नेक्स्ट ईयर तीसरा पढ़ो, मतलब वो एक ठीक से समझ पा नहीं रही है कि दूसरा उनके सर पे डाल दिया जा रहा है, फिर तीसरा डाल दिया जा रहा है। तो इस तरह से तो उनका मैशअप ज्यादा हो रहा है और उनका मेंटली ग्रोथ बढ़ने की जगह मुझे तो कुछ कम नजर आ रहा है सर। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, दिस मैं आपकी बात, बिकॉज दिस इज this I have to go more into this. I try to answer her question. हाँ बोलिए आप बताइए। मैं मंजूषा जी, मैं ये कहना चाहूंगी, यदि आप स्किल कोर्सेज के और उसके बारे में बात कर रहे हैं, माइनर कोर्सेज के, तो जरूरी नहीं है कि हमारे कोर्सेज जो है वो चेंज हो जाए सेमेस्टर दर सेमेस्टर। नहीं दीदी, मैं उसके लिए नहीं कह रही, ना, मैं सब्जेक्ट के लिए कह रही हूँ। जैसे आप भी तो आप 3 सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आप उन सब्जेक्ट्स को चेंज करके नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर फिर आप चेंज कर रहे हैं। मैं बीए की बात कर रही हूँ, बीए में आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, मैं उस चीज की बात कर रही हूँ दीदी। एक सब्जेक्ट आप ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चा क्यों कॉलेज नहीं आता है, फिर दूसरा वो चेंज कराया कि ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया, फिर उसको दूसरा भी समझ नहीं आया, फिर उसने तीसरा चेंज कर लिया। सर रियली मैसअप, मैं उस चीज के लिए कह रही थी। कंटिन्यूअसली चेंज नहीं कर सकते, कोर कोर्सेज को चेंज नहीं कर सकते आप, स्ट्रीम डिसाइड हो जाती है तो वही चलती है। कोर कोर्सेज को एक बार लेने के बाद उसको बाद चॉइस करने के बाद में कहाँ चेंज कर पा रहे हैं? नहीं दीदी, बिल्कुल चेंज किया, हमारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चों ने चेंज किया था फर्स्ट ईयर में, लेकिन बस यूनिवर्सिटी की तरफ से वो चेंज नहीं हो पाया, दैट्स व्हाई। और लास्ट मोमेंट बच्चों को मिला कि वो वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो वो पढ़ते आ रहे हैं, और अभी तक उन्होंने कम से कम 3 से 4 महीने उन्होंने नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा। वो थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, आपको शायद इसके बारे में और डिटेल में बात कर सकते हैं हम लोग। जी कोर दीदी, कोर्सेज को चेंज करना अलाउड नहीं है। कोर कोर्सेज डिसाइड्स द स्ट्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स,
or once they have chosen them, they have to be carried out. Okay. Third year Thank में you, से दीदी. out of the 3 core courses, you can leave one of them. ठीक है दीदी. Only two have to be selected in only in the 3rd year, not the 1st or 2 year, 1st or 2nd year. Okay, okay, okay. Thank you, दी. नवीन शर्मा जी हमारे यहाँ हमारे मैथमेटिक्स के हेड हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे. नवीन शर्मा जी प्लीज. नवीन जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. प्रोफेसर नवीन शर्मा जी, you can mute yourself. सारी चैट गायब होगी मैडम. नवीन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नवीन जी संजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, तो नवीन जी शायद मुझे सुन नहीं पा रहे हैं. उनको पहले रेज हैंड किया था मैंने, तब उस समय पर कृष्णा जी बात कर रही थी. आप करिए अपनी बात रखिए. नहीं मैं यू टेलिंग मी गरिमा मैडम. वो मुझे लग रहा है हमारे प्रोफेसर संजीव कुमार जी बॉटनी डिपार्टमेंट से कुछ कहना चाह रहे हैं. अच्छा ठीक है. तो I will just take one interruption here. I would also like to thank you, Garima Madam, and your technical team, because I was expecting there will be a lot of glitches in this. There was no glitch, and I believe the audio and the video was audible and visible as well. Thank you very much. You can convey it from my side, ma'am. Thank you. Over to Dr. Sanjeev. If any other query? एक्चुअली मैंने एक पहले चैट भेजा था, उसको मैडम पढ़ दीजिए. अच्छा अच्छा. उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डल जाए तो अच्छा लगेगा. बोल दीजिए खुद ही, आप अच्छा लगेगा आपका बोलना. नहीं नहीं मैडम, मैंने एक चैट भेजा हुआ है, आप उसको पढ़ दीजिए. कम्युनिकेशन में थोड़ा दिक्कत हो रही है. Informative lecture, but I worried about maximum exploitation and pollution is made by educated section of the society. Extensive use of AC, refrigerator, LED, RO, plants, gamla. You are very good satire it is, but the solution for the sustainability have to be found out by ourselves only. Suggestion भी आप ही देंगे संजीव जी, इसके लिए आप मेरे botanist and your suggestions are most welcome always. एक्चुअली मैडम मैं ये चीज चर्चा में लाना चाहता था, सभी लोग अपने विचार व्यक्त करें तो ज्यादा बढ़िया लगेगा. ये बहुत ग्रिम सिचुएशन है, आने वाले समय में ये सबको फेस करनी है. हमें ओल्ड एज में हमें अकेले रहना है, और हम अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, तो ये कैसे चलेगा? तो बॉटनी वाले जो हमारे सेशंस में हैं, तो बॉटनी के बायो साइंसेस के जो हमारे स्पीकर्स थे, उनके सामने ये क्वेश्चन आता तो वो ज्यादा एलाबोरेटेड टॉक दे पाते. फिजिक्स वाले तो टेक्नोलॉजी की और उसी तरह की बात करेंगे. हाँ, लेकिन ये मैडम मैंने फिंगर अपनी तरफ की है. Sustainability has to be adopted by each and every person. ये मैडम फिंगर मैंने अपनी तरफ की है, किसी को फिंगर नहीं किया, अपनी तरफ फिंगर की है. मैं समझ रही हूँ, आपकी नेचर ये नहीं है कि आप किसी दूसरे को फिंगर करेंगे. मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन सॉल्यूशंस भी, प्रॉब्लम्स भी हमारे मैन मेड है, सॉल्यूशंस भी मैन ही सजेस्ट करेंगे. अभी हमने मैडम 1 बजे चाय पी, उसमें हमारे पास प्लास्टिक के गिलास थे जिसमें हमने चाय पी. हमारे पास जो आइटम खाने का था प्लास्टिक में पैक था. एंड दिस इज द लेवल ऑफ ऑल एजुकेटेड पीपल इन द सोसाइटी.
जिसमें नाश्ता किया वो प्लेट हमारी पेपर की थी, हमने जिसमें चाय पी है वो प्लेट पेपर का था। लेकिन हाँ, पेपर का यूज भी नहीं है। इस तरह का जो बायोडिग्रेडेबल सॉल्यूशन होता है, मैडम इनिशिएट तो कहीं से करना पड़ेगा, शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। होते ही रहने चाहिए। नहीं, यहाँ पर एक बार तो कॉफी डे हाउस है, कॉफी हाउस है, नहीं पोफा डे का है, मॉल बना है यहाँ पर, वहाँ पर 50। The college to thank the guest speaker. बात हमारी को हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इस समय में मुझे लगता है कि हमें इनवाइट कर लेना चाहिए अपने प्रिंसिपल महोदय को, प्रिंसिपल प्रोफेसर संजीव कुमार। We will thank our guest speaker, Brigadier Sanjay Singh ji. ठीक है मैडम, I hope I will get the solution by the discussion. Sure, sir. By the discussion in the college with my colleagues. जी नमस्कार। आप लोग सुन पा रहे हैं प्रोफेसर संजीव कुमार जी को? Is he audible? Yes, ma'am. Yes, he is audible. संजय जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार। आपका लेक्चर बहुत अच्छा रहा है। ये मैं एक्चुअली अपने ऑफिस में भी आपका लेक्चर सुन रहा था। ये एक एक करके चीजें जो आपने बताई हैं कि हमें इस तरह से चलना चाहिए, एक रोड मैप तैयार किया गया है। एजुकेशन पॉलिसी तो इंट्रोड्यूस हो चुकी है, लेकिन इसके लिए हमें भी बहुत कुछ करना है। हम लोगों के पास जो चीजें हैं वो जिस तरह से दी गई हैं उसी तरह से चल रही हैं। इसमें बहुत जरूरी है इम्प्रूवमेंट होना, और जो तरीका आपने बताया उसके चलने से हमें लगता है कुछ रास्ता हमें दिखाई दे जाएगा कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। और रियली आपका ये 90 मिनट्स का टॉक जो है बहुत लंबा जर्नी होती है, और इस तरह में इसमें जो आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, पीपीटी बनाते हैं, बहुत दिमाग लगा के बनानी पड़ती है, और प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा आपका। मैं समझता हूँ कि आगे भी आप हमारे कॉलेज में इस तरह के प्रेजेंटेशन ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन भी देंगे। I will come. है कि आप एक बार जरूर आए यहाँ पे, और इसी हॉल में नहीं, आप बड़े हॉल में आप प्रेजेंटेशन दे, उसमें 200-250 लोग आपकी बात सुने। किसी दिन आपको बुलाएंगे, उसमें जरूर। Certainly. Thank you. Thank you very much, Sanjay ji. Thank you. Invitation at a short notice, and Not again we have extended another invitation to you for the physical presence and offline mode address. You plan it, ma'am. I will come. You give me I mean, same thing, extension of this NEP. Anything you want me to communicate, give me a little time. I'll prepare one more topic. I have one more topic for you, that is your favorite topic, and I think students must be make aware about that also. So I will talk to you about I think you're talking about the emotional intelligence. आप कराइए उसको, because I have done quite a bit of study on that. आप रखवा दीजिए उसको. I'll come and deliver the talk on this. That is the need of that day. Certainly. Aggression and anger and everything is to control our one's emotions. That is very much necessary. जी. चलो, we will. This is deal. Now you decide the date and let me know when do you want this. ठीक है? I'll come and deliver the talk. Certainly. Sure. Thank you very much. Thank you, Garima madam. Thank you very much, sir. It was nice interacting with all of you. आपका भी धन्यवाद सर, बहुत। Thank you. Thank you, sir. पानी का